This conference will now be recorded. Hi guys, welcome. Hope you guys are well. Uh, we're not trying to, I'm not sharing something. Not trying to teach anything here. This is the Outlook free session for anyone who wants to ask any questions or have any comments or have anything about markets, market related. So you can either unmute yourself and ask a question, or you can type in the chat box. Either way, I'll take the questions. Anyone can start about anything that you, apart from, I won't be taking any specific stock queries as such कि uh, ये stock क्या लग रहा है, वो stock क्या लग रहा है. I'm not going into that. If you have any specific queries about your trading, problems in trading, emotional problems in trading, execution, mindset, anything, technical analysis, anything, if you want to ask any question, you can ask. Uh, I hope I'm audible to most of you. So anyone can. Hi, Sorry, Mahinder, you can. I uh, muted you. You can unmute yourself and start again. Sorry. uh, hi, Gunjan. I'm your Rafale student. I'm doing well. Thanks for Yeah. that. And I have one problem, which actually I'm trying hard, is Okay. uh, watching market on everyday basis. I have Okay. other business also. Right. What happens is I get tired handling that, but getting up at say 7:38 to the market, preparing for 1 hour, then sitting on it doesn't really works for me. Is it anything you can? What kind of trader are you? Are you intraday trader or No, positional? I'm not. No, I'm more a positional trader. Sometimes I work more on weekend than on trading days. Okay. But some price action I miss out on a lot of time. Why? Maybe I'm not with the screen for some time. I mean, Okay. Yeah. What you can do is you can increase your time frame analysis, positional think more. Don't look at larger smaller time frames. When you do your analysis, try kind of a 4 hour, 2 hour daily kind of a thing and put the trades in. Always keep hedged and take positional kinds of bets. You do that like suppose, for example, I'm just putting here. This is a chart of S&P 500. Let's suppose you were trading S&P 500. So the analysis. Suppose this is your analysis. So analysis is this is head and shoulders. It has broken now tested the neckline and then it will go. It can go lower. So as a trader, what you will do? You don't have to look at it every day. So in this range, around this range where the top was made, around this range, you can put your trades in, right? When it fills, you will automatically, you can set some kind of on TradingView or investing.com or somewhere, you can put some sort of a reminder kind of a thing. So when that executes, you get an SMS or you get some sort of and then you can hedge it accordingly. So you don't have to look at. Anyway, any trader who is not intraday doesn't need to look at markets tick by tick, hour by hour. I personally, because I trade multiple markets, that's why it is in front of me. But a lot of stocks I don't even look at it on a, like for example, my portfolio, that is my investment portfolio. I don't even remember what the price. I don't look at them day to day. You know, I just look them at our overall portfolio once in a while because my time frame is longer. I don't want to sell it earlier. And coming back to your question, the thing is that you can do your analysis, put the trades in, and then that's it. Now you don't have to look at them again and again. When if it hits, it hits. You can put all the stop losses and everything in. If you are doing it by, I mean, a better way is to hedge.
rather than keeping a stop loss, a better way is to hedge. So again, it depends. You have done Rafael, so you know your places where you want to enter, where you want to exit, all of these things. Where are the supports? Where are the resistances? So you can place that order in beforehand, and just hold on to it. That's it. And sorry, you are told in the, I mean, previously that you are not going to take individual stock. I just want to know one your take on silver. I personally think silver will go to 100 ounce in 10 years Look, due 10 to years. Look, yeah, this is it has been there. Yeah, you can call, finish your question, then I'll. yeah, 100 ounce. I want to really stock it up so that I create a lot of wealth there. I just want a contradict view that this is wrong, this is not the way to do, something like that. Look, reality wise, you might have your reason for that. I mean, I'm not saying anything can happen. 10 years is a long time. Things change, regimes change, ideas change, thought processes change. You will No, see, my waiting period. That's it. My holding yeah, I period, mean, whatever you call. holding period. That's what I'm saying. That like 2 years back, for example, my fund was very bullish on. So I'm not the only one who take decisions. I don't, what I don't take, what I don't trade, I don't take decisions on day-to-day basis on that. So I don't trade gold or silver, as I've said. But I have my zones where I accumulate personally, but I don't trade them. So this is either this high, which this one here. Here is where I exited, 27, 28 here. Since then, it has not done anything. In 2011, long time back, this is a monthly chart, the data that is available for with us. So it went to 50. Can it go to 50 again? Yes, it can. Can it go to 100? Maybe. I don't know. So, but the thing is that we go step by step in a way that my buying zone for silver, I'll be happy to buy at 15 if it comes. Everyone will be, I guess, 15, 16. My target is 25. When a super cycle comes, look, why will it go to 100? Is there a supply issue? Uh, First of all, we have to see the fundamentals of what is used. Where is silver used? It's a precious metal plus industrial commodity as well. Why will it go higher? I mean, why will it go to 100? And what will it do to the economies around? What will it do to the manufacturing? What will it do to the other things? So all of these things, like I am bullish on uranium personally. I think it can go higher because multiple reasons for that. But yeah, short squeeze can 100 is very far. I'm being very honest, but yeah, it can go back to 50. What it does at 50, then we'll see. First of all, if one is the holding period point of view, does it cross 30? If it crosses 30, will it go to 50? If it crosses 50, so at every level we have to see what it does, right? So if I take the example of, say, crude oil, so when I was shorting at 127 here, so I thought I mean, this is a very plain, simple chart. So I mean, I'll go back from where I started posting on Twitter. It was around these 55s here, 55, yeah, this areas. At that time, I can't go back and find that tweet, to be honest. But some people who know me might have seen that tweet that 55 will break. I mean, and it will go to single digits, and that will be a multi-generational buying opportunity, or a monthly decade, or I don't remember the time frame was. I mean, in a decade, this will be the best opportunity. So it went from 55 to uh, it went to minus 40. We'll leave that, but it went to single digit. I sold here, bought at 12, exited around same level, sold at 127. And I mean now. So what I'm trying to say is we go from level to level. It won't go uh, straight to your silver thing. If you are holding or want to hold, it won't go straight to 100. So what we do at moment, so if for a trader, first stop, if I am very happy to accumulate at 15, 16, as I said, around this area. If it comes, it can come. If it comes, I'll buy at this area. If it goes here, I'll take some profit out, right? Hold on some, do some hedging, do things like that. And if it moves higher, then the next stop is 38, 47. What market does there? Then we'll decide. So it's a step by step. I mean, market, being very honest, market doesn't care
Can you just give me 1 minute? I'll just 1 minute. Yeah, sorry, I have to take that call. So coming back to silver, I mean, or any other commodity, the thing is, another thing is opportunity cost. You are holding silver at X amount, and then yes, it can go 5x from here, 4x from here, according to you. But in those 10 years, if it doesn't, then what happens? So, I mean, we've been, as I said, our fund was very bullish on gold at 2000-ish level, but I didn't see very much bullishness. So we exited around those levels. I mean, we're discussing this in the community group as well, that we exited that, and then gold has come down. It has done nothing. I mean, if you see gold, even silver, if you see that, so since 2011 till now, it has done nothing. So 12 years of underperformance already. So if you invested somewhere around here, 25, 26, you've done nothing. That money that you, I mean, so for me, any stock that is not making money for me, holding it, it's not worth it for me. Honestly, this is my opinion. I mean, again, if am I audible to people, everyone? Can you hear me? Yes. Yeah. Yeah, very much audible.
Yeah. And finally, Gunjan, I don't want to take more time. My Yeah. rationality is buying silver was the electric angle. All electric vehicles need some sort of silver, and printing of all this money for so many years by Fed. So, is it not right, or Look, printing of money will look. I think that will continue because now printing will go to digital, which is very. I I think we are going in a even worse phase of the printing that is digital, which there is no money. I mean, even if you see, for example, banks issue uh, one suppose 100 million worth of debt today to someone. Uh, that 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 debt is just in your account, you can see that number, but even if that is not real money, it's working, right? There is no there's even if it's not in cash. Previously it used to be some, we were discussing again on the community group, that we were that it was gold standard. Then IMF was founded, and then everything changed. Now it's not gold standard, so they can print anything that they want to. uh, Same with digital currencies, it's just a number. And you see, that I don't know, we don't know that there's that much cash available, and then there are derivatives are on leverage. This is a complex, very complex cycle. Yes, this rationale holds that okay, we'll go to gold standard again, but who will do it? I mean, before that we have to do a lot of things, and I don't think politicians are ready. Even gold standard is very far away. Even taking steps like, like the deal which was done in the morning. In Yesterday, the person was saying that till they stop sending aid to Ukraine, we will not let the government function. But today there was an inside kind of a deal, and then they have given another 45 days to them. So this is a very complex scenario. So we'll keep that to on your electric side. That is makes more of a sense. But then there are a lot of plays in that. There are a lot of metals are, you can play around with that, which are at similar levels. Exposure in them is difficult, like copper, for example. Copper has been in that range forever, I think, since I remember. It's not gone much up, it hasn't gone down. So what it will do to the economy, again, if silver goes to 100, for example, let's take that assumption. If silver goes to 100, what will the and then it's not only the silver will go up, rest of the metals, all the metals will rally. So I mean, we assume that okay, electric is the future and silver is the metal, and rest of the metals, few others, will take the center stage. And but will there be a buyer at that level? Where will inflation be at that level? I mean, will we go back to the petrol engines, or the so there are a lot of ifs and buts. So again, as a trader, you can look at it either way. So coming back to your question, let's you for a trader or an investor, go from level to level. They will be selling at around here because previously. Then if it crosses, then huge rally can come. But then where will we go? So we have to keep on booking profits, and we have to keep on. Uh, we have to be flexible. If I had silver, I will look at this way. 100 again, anything can happen. Orange juice is rallying like crazy. I mean, if you I don't know if you guys track it or not, but if you see the chart of orange juice, it's you see, it's orange juice. So why can't silver go up? It has come out of the range here, and then it's going up crazy. Now it has come down a little bit. And you see the monthly chart. So since 2005, it has done nothing. 2005 to 23, it's in the same range. Once it breaks out, nickel did the same. Silver can have its moment as well. So yeah, I mean, a lumber did the same, but it crashed again. So yeah, lumber, we see what it did lumber from where and when it came back here. So you see lumber, it went from 520 to 1700. So it can happen. I mean, I'm not just saying it cannot happen. It can happen, but then we have to be a little bit cautious about other things as well. Because if lumber stayed at this level, housing will collapse in the US. It didn't stay. It came back. See from where it came back, and then when again run up, again came back. There are volatile things. Silver too can happen, but I'll go from level to level. But if you be lucky,
this 100 thing has been around for a long time. I've seen many analysts, many people, 10,000 or 5,000, 10,000 gold, uh, $1 million Bitcoin. These things have been there, but we don't know. Anyone else has a question? Yep, this is Partha. Hi. Yeah. I have a question on the position sizing. I always have this question whether I'm being over leveraged or whether I'm all right. So how do we know if we are having the right position size or not? Is there any formula or something like that, some technique you can Yes, throw some light? there is a formula, there's a structure which I think I opened the opposition sizing module as well. The way I do it, or the fund does it, or the main, or all the hedge funds, most of the hedge funds do it. So it's a it's not simple like I have 100,000, for example, dollars, and I how many lots can I buy. It's not works like that. Positions are built based on what stop loss do you have, what risk appetite are you gonna have. You have based on that you fix your stop losses. There was another free video on my channel, the YouTube channel, that about stop losses, with volatility. So based on that you can fix your position sizing based on the ATR stop loss. If someone hasn't seen it, can see it. So it's on the free, it's in the video section, you will find it out how to trade volatility, something like that. ऐसा कुछ है. So so the position sizing is done based on multiple factors, and you have to understand that factor. And then like everyone everyone knows that funds rebalance their portfolio. There were a lot of chat that mutual funds will keep nav ko karne ke liye, they will keep these things at keep the prices high and things like that. I think Friday only it was that. uh, so that is rebalancing of the portfolio. When will you do your rebalancing on your portfolio? The problem with most traders is that, not all but most, so you guys, not you guys is not right, but people, you might be different. I mean, by you I mean everyone. It's not pinpointing to anyone. By you I mean everyone. So what happens is most people trade binary. मैं ये subject बहुत बार उठा चुका हूँ. Binary का मतलब क्या होता है? 0 1 0 1 0 1, right? 0 1 0 is either I buy or sell, buy or sell, buy or sell. So you are doing that. You are, by you are again everyone, most people. So I am a portfolio manager. मेरे को मेरी aim क्या है? As a portfolio manager, what is my aim? My aim is to create a portfolio, first of all, based on various parameters, risk and reward, all these things, that कहाँ पे support है मेरे हिसाब से, resistance कहाँ है, मेरा model क्या कह रहा है, things like that. Then you create a position based on that. Then you hedge it in such a way कि अगर वो स्टॉक नहीं भी मूव करता तब भी आप पैसे कमाते हो, मूव करते हैं तो आप थोड़े से कम कमाते हो, because you are hedged, and because you are buying at a support or resistance, because you are buying at a specific strong place, you have your win probability increases. And then you keep a stop loss. Stop loss is what? Based on ATR. And ATR कर लो या जो भी आपका mechanism, I'm not preaching any mechanism, but I'm just saying. तो ये जब 4 या 5 चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, then it becomes a stronger portfolio. So some are long, some are short. I say I'm 80% short in short portfolio, but that doesn't mean कि मैं naked short हूँ. उसमें से कई मेरी पुट शॉर्ट हो सकती हैं, कई मेरी कॉल शॉर्ट हो सकती हैं, लॉन्ग पुट्स भी हो सकती हैं. नेट पोर्टफोलियो की बात मैं कर रहा हूँ. मोस्ट पीपल ट्रीट ट्रेडिंग एज एक दो स्टॉक ले लिए, अगर वो बहुत अच्छा कर गए दे आर वेरी हैप्पी, अगर वो नहीं किए दे आर वेरी सैड. I have a portfolio in my portfolio, Polycab is short, but जब वो ऊपर जाता है I don't get very sad because it's part of my portfolio. It is not my only stock in my portfolio. वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, I get losses from that. Puts प्रीमियम्स कम हो रहे हैं, पर बाकी 3 4 स्टॉक्स निफ्टी ये वो उनको मिला के what do I make? You have to think like that. It's not that कि I mean, again, you get my point, what I'm trying to say. Problem यहाँ आती है सबको. That's why in the mentorship program, I'm not trying to sell mentorship program. अभी मेरा कोई plan भी नहीं है. But I'm just saying, when I ran the mentorship program, मेरी target यही होता है कि my target is that I have to that first of all you need to know what you are doing. ये पहला concept है कि आप कर क्या रहे हो. आप
everyone says कि I'm a professional trader because I trade every day. That is not the definition of professional trader. ठीक है, अगर आप रोज ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलते तो आप प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन जाते. अगर आप रोज सुबह आई मीन 400 मीटर के 10 राउंड्स लगाते तो आप प्रोफेशनल रनर नहीं बन जाते. अब अगर आपने स्कूल अब कुछ भी कह लीजिए, यू नो, अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो यू आर नॉट अ प्रोफेशनल शेफ. सेम वे, इफ यू ट्रेड एवरी डे डजंट मीन यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर. You are trading, but it is not a professional trading structure, because you don't understand. By you mean a lot of people, रिटेल क्राउड. मैं रिटेल को कैपिटल के हिसाब से नहीं जज करता. आपकी कैपिटल 1 लाख हो तब भी आप प्रोफेशनल हो सकते हो. आपकी कैपिटल 1 करोड़ हो तब भी आप रिटेल हो सकते हो. Retail is not through, in my eyes, it is not what you, I mean, it is not about capital. It is how you trade. It is how you treat the trading. That is what it is. So I mean, drifting from the topic and coming back to your question, this is, I think, the major problem that people are facing. uh, सबको टेक्निकल एनालिसिस आता है. बाय मतलब बेसिक तो आता ही है ना कि ये कैंडल है, वो नीचे वॉल्यूम है, वो एवरेज वॉल्यूम है, यहाँ पे ये बार है, नीचे आरएसआई लगा सकते हैं. ये these things everyone knows, and they don't work like that, but people know. And people make some sort of a money as well, but where they lose money, क्योंकि जितने आपके questions होते हैं, if you look at people's questions or your questions, you will find out कि mean क्या आ रहा है उनका mindset. Mean क्या आ रहा है that I'm struggling with my mind. I'm struggling to hold on to my positions. I'm struggling to I'm booking profits early. I'm holding on to the losses position longer. I am hedge को मैं जल्दी काट देता हूँ, position को roll होने चलते रहने दे. The things like that. These are the struggles of the mind. First of all, उसका basic क्या है कि that people don't know what actual professional trading is all about. Once you learn that, once you work on your mindset, I gave a roadmap last week के, अगर आपने उसमें देखा हो, मैंने एक roadmap भी दिया हुआ उसके अंदर. आप जरूरी नहीं है कि आप mentorship किसी की भी करें, ठीक है. आपको ये चीजें जब तक आप उस पे फोकस नहीं बनाएंगे, जब तक ये चीजें आपको आनी नहीं शुरू होंगी, तब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे. चाहे आप आउटलुक प्रीमियम में है, चाहे आप कहीं पे भी. आउटलुक प्रीमियम में मैं सिर्फ अपने ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, पर कई लोग पोजीशन साइजिंग का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये, जब अभी तो मैं नहीं कर रहा, लास्ट ईयर जब स्टूडेंट्स को मैंने यही कहा था, शायद उनमें से कई लॉक ऑप्शन गॉड के 1-2 लोग भी इस क्राउड में भी हो, आई डोंट नो, बट आई ऑलवेज से कि आई कैन गिव यू द सेम ट्रेड्स, सेम स्टॉप लॉस, बट आप सबके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे. एक ही ट्रेड में आपको दो निफ्टी बाय फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज द स्टॉप लॉस. A lot of people will have different results. Trade hit on target hit होने के बाद भी. Some will exit early, some will do hedging, some will not do hedge. There are multiple things that are happening here. So that is why trading is very complex. Analysis is not complex. हम analysis को trading के साथ जोड़ देते हैं कि if I analyze this, trading भी वैसी होगी. No, live market is very different. So I think one has to work on that. Position size का जो, again, मैं नहीं कहता आप मेरे से कुछ, I'm not trying to sell anything here. It doesn't make much of a difference to me. But I'm just saying learn position sizing. Then you will be, position sizing नहीं है वो कि आपने 1 लाख रुपया है तो मैं कितने लॉट ले सकता हूँ. People ask this question a lot कि how many lots can I buy? It's not that. Position sizing and risk management work together. उसके बाद जब और लोग मुझे कहते हैं, I mean, I'm not drifting off topic, but a little adding something. A lot of people say कि brag about on Twitter, no, I'm not naming anyone, कि we don't know, they make fun of Greeks, for example, ठीक है, that we are making so much money, I don't know single thing about Greeks. Greeks are not about making money. Greeks don't help you make money, they are risk management tools. आपको डेल्टा, थीटा, गामा, रो, वेगा, वाना, वमा, चाम, ये लास्ट वाले 3 शायद आपने सुने ना होंगे, कलर, इन चीजों का जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रॉफिट्स में. Won't make much of a difference. You will need to know vega, you need to know theta, that can impact your profit, but these are risk management structures. These and that risk management goes into position sizing. People don't understand that. People make fun ki gamma, mama and all that, they say these words, right?
दैट डेल्टा थीटा मुझे कुछ नहीं आता, मैं देखो कितना अच्छा प्रोफेशनल, दे आर नॉट प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बिकॉज आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि ऑप्शन मूव कैसे करती है, कितने दिन बाद कैसा डिके होगा, वेगा का इफेक्ट कितना होगा, गामा लास्ट डे पे कैसे मूव करेगा, कितने डेल्टास के आगे पीछे जाना है आपने। जब ये एक व्हील है, व्हील की तरह, जब मैं ऑप्शन गॉड में बेसिक ऑफ ऑप्शन का किया था तो मैंने उसमें व्हील बना के दिखाया था, जैसे जैसे व्हील मूव करता है उसी तरह ऑप्शन की प्राइसिंग मूव करती है आगे या पीछे, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको ठीक है, आपने 100 रुपए की ऑप्शन ली, 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, 120 में बेच दी, दैट इज पंटिंग, then you might make money, you might not make money, but if, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हैं, और अगर आप पैसा गवा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आप गलत हैं। You might be on the wrong side of the trend. I mean, market might have some news flow built in it, कुछ हो सकता है, और जरूरत नहीं अगर मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ तो मैं हमेशा ठीक ही होऊंगा। I might be lucky, but to understand the basic of options, especially Greeks, सारी information available है YouTube पे, आपको कोई मेंटरशिप, कोई जानने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि शायद आप लोगों को लगे कि मैं अपना कोई कोर्स बेचना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बेचना नहीं चाह रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक्स, कि आपको अगर ऑप्शन के बेसिक्स जानने हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स, MIT के लेक्चर्स बहुत भरे पड़े हैं, आप जाइए देखिए उसमें सीखें। ठीक है, मेंटरशिप का फायदा ये होता है कि ये आपको जो बनी बनाई थाली मिल जाती है, ठीक है, और वहां जाके आपको हर चीज खुद बनानी पड़ती है, ये दैट इज द ओनली डिफरेंस। So again, I mean, for position sizing is not very simple. Try to learn position sizing ऑप्शन के बेस के ऊपर। मैं तो ऑप्शन का पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, मेरे पास ऑप्शंस होती हैं यूएस मार्केट्स में, कमोडिटीज में, तो मैं उसको रीबैलेंसिंग करता हूँ ताकि अगर मूव ना भी हो, अब मैं वो प्ले AUD USD में कर रहा हूँ, मैंने ऑप्शन का पोर्टफोलियो AUD USD में बनाया है ताकि इफ नथिंग हैपेंस आई स्टिल मेक मनी, इफ इट गोज अगेंस्ट मी, मेरी पोजीशन साइजिंग ऐसी है कि इट वोंट हर्ट मी मच, आई विल बाय मोर, एंड इफ इट गोज हायर, मैं नेट लॉन्ग हूँ उसमें AUD USD में, तो अगर इफ इट गोज हायर आई स्टिल मेक। Sir, one question. Can I interrupt? या So how do you decide whether you're net long or net short? I mean, you have 10 to 15 positions. Like, do you check each one, or how do you? Is there a way to check whether we are long or short? ऑप्शंस के अंदर भी हैव नेट डेल्टास, आर यू शॉर्ट डेल्टा, आर यू शॉर्ट डेल्टा, लॉन्ग डेल्टास, उसके साथ आप कर सकते हैं। फ्यूचर का अच्छा, वो डेल्टा तो हमेशा वन इंडिविजुअली होता होता है ना, मगर पूरा है, आप टोटल मिला के। पोर्टफोलियो को ऐड कर लें। अच्छा, ओके, वही करना है ना, ओके ओके। हाँ, पोर्टफोलियो को ऐड कर ले, फिर प्रोसेस आती है उस पे बीटा पे, उसकी फिर हम वेटेजेस करते हैं, उसके लिए मॉडल्स हैं। अगर आप बेसिक की बात करें तो डेल्टास को आप ऐड कर लें, पर हर एक का स्टॉक का बीटा डिफरेंट है। अब मैं पॉलीकैब और ITC को अगर एक ही डेल्टास में मैचिंग करूंगा तो वो चैलेंज रहेगा, ठीक है, बिकॉज उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। उसको मॉडल कैसे करना है वो ट्रिक है, वो दैट इज व्हाट वी डू, बट बेसिक में बात बता रहा हूँ कि टू तो नो थंब नेट रूल तो शॉर्ट। डेल्टास को ऐड करने का है ना? हाँ, सारे डेल्टास आप जहाँ शॉर्ट डेल्टा हो वो माइनस हो जाएंगे, माइनस, लॉन्ग ओके। डेल्टा प्लस हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्लस में हो नेगेटिव में हो। बट अगेन एज आई सेड, इट्स नॉट एप्पल्स टू एप्पल्स, बिकॉज हर स्टॉक की आपकी वॉलेटिलिटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, पर उसमें उसको मॉडल कैसे करना है, दैट इज व्हाट वी डू। I mean, that is what the tricky part is, but I'm just giving the basic things. थैंक यू। I'll take some questions from the chat, फिर someone can come and take it. I'll read few chats वाले, फिर आप again you guys can mute yourself and someone wants to ask a question. If one wants can. पहले मैं chats वाले ले लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। Samir has asked how to start the analysis of any given instrument when you see it for the first time. I mean, simple तो price है, जब आप कोई भी चीज पहली बार देखते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, what should we take? ऑरेंज जूस ही ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, जिसका आप लोगों को पता नहीं था, ऑरेंज जूस फ्यूचर्स, ये मंथली भी रखते हैं। तो अगर आप अब यहाँ पे हैं तो आपको क्या नजर आया कि रेंज में था कई साल से, अब रेंज से निकला है, ये बेसिक बात कर रहा हूँ, कोई एडवांस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल वेरी सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। ये एक रेंज में था, वॉल्यूम को 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ।
तो ये रेंज थी, तो ये रेंज से बाहर चला गया। जैसे बाहर गया, एक दो महीने उसने लगाए, फिर उसके बाद उसने मूव किया। अब ये आपके लिए मैं लगाता हूँ, मैं वैसे बार्स देखता हूँ, कैंडल्स लगाता हूँ, तो उसके ऊपर फिर आप मूविंग एवरेजेस ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर आप ऑसिलेटर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे सिंपल स्टोकेस्टिक, दिस वेरी सिंपल कि कहाँ पे है वो। फिर आप उसके बाद जब आपको बेसिक पता चल गया, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, वहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज मंथली पे तो एग्जीक्यूशन नहीं ना हो सकती, मंथली पे सिर्फ एनालिसिस हो सकती है। तो आपने एग्जीक्यूशन तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो शायद 1 आवरली पे करें, तो 1 आवर पे क्या हो रहा है आपको पता चल गया, ट्रेंड आप पे, फिर आपको ये पता चला कि ट्रेंड बहुत ही एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम ट्रेंड में आप क्या करना चाहेंगे। मैं होता तो मैं एक्सट्रीम, अभी मैं मेरी कोई ऑरेंज जूस में पोजीशन नहीं है, अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल अभी मुझे ऐड करनी होती, तो मैं इसको शॉर्ट वॉलिटिलिटी प्ले खेलता लॉन्ग्स के साथ। अभी नहीं, अभी भी शॉर्ट वॉलिटिलिटी प्ले है, मल्टीपल वेज से खेला जा सकता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू, अब यहाँ पे मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट अगेन इट हैज मूव्ड हायर 90 डिग्री काइंड ऑफ अ मूव जो ज्यादा देर टिकती नहीं है, तो नाउ इट कैन कंसोलिडेट हियर। अब अगले 1 या 2 महीने में शायद अगर नीचे ना जाएगा कंसोलिडेट करेगा, नीचे जाने का रिस्क कंपैरेटिवली कम है अभी तक तो, तो पर मुझे शॉर्ट कॉल्स शॉर्ट पुट्स में प्ले करूंगा, वॉलिटिलिटी को यूज करूंगा, जहां पे उसके बाद ब्रेकआउट थोड़े थोड़े हफ्तों के बाद हम, ये चार्ट आप याद रखिएगा, वी विल कम बैक टू दिस चार्ट अगले कभी 2 महीने बाद एंड विल सी क्या हुआ। पर अभी तो ये लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा इस रेंज के अंदर, और फिर शायद एक और ट्राई करके खत्म हो जाएगा। शायद ट्राई फिर से ना भी आए, पर वो विल सी, अभी कंसोलिडेट करेगा, और अगर सेल सिग्नल आया तो फिर सेल सिग्नल लेंगे। अभी तक तो कॉल शॉर्ट का सिग्नल है। इन मैं इस तरह देखता हूँ। अगेन आई यूज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट वो जिस चीज का आपको पता नहीं उसका मैं समझाने का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो इट्स वेरी सिंपल, सी द ट्रेंड, सी वेयर इट इज, किस तरह की मूव है, कहाँ जाने वाला है। हर अगर हम यहाँ होते तो आई चेक कि ये जा रहा है ऊपर के नहीं जा रहा। अब हाइंडसाइट में कहना बड़ा आसान है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, कि यहाँ ऊपर चला गया तो मैं भी लॉन्ग हो जाता, बट ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते थे। वंस ये शॉर्ट हिट्स यू गो लॉन्ग। अगेन जब ये इसके ऊपर चला गया, शॉर्ट पुट्स इस तीन बार के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पुट्स भी कर सकते हैं। मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट, एज आई सेड। अतुल गुप्ता, व्हेन टू एग्जिट इन सच केस इन सिल्वर, समवन इज होल्डिंग सिल्वर। देखो एग्जिट अगेन एक आर्ट है एग्जिट करना भी। मैंने एक बार आई ट्राइड कि मैं बस टाइम नहीं मिला कि हाउ टू एग्जिट। एग्जिट के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं ऑसिलेटर्स नहीं देखता, इंटरनल स्ट्रेंथ देखता हूँ। जैसे 2001 टू 2175 पे मैंने ट्वीट किया था कि इंटरनल स्ट्रेंथ वीक है। राफेल में मैं वही सिखाता हूँ, अभी इस राफेल चल नहीं रहा, मतलब इट्स आई एम नॉट टेकिंग एनी स्टूडेंट्स हियर, बट राफेल में मैं वही सिखाता हूँ कि हाउ टू गॉज द इंटरनल स्ट्रेंथ। और इंटरनल स्ट्रेंथ जब उसकी खत्म होती जाती है, तो पहले स्टेज के अंदर मैं ऑप्शन शॉर्टिंग में वॉलेटिलिटी को यूज करता हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर यहाँ पे आपको मैं इसी ऑरेंज जूस का ही हम एटीआर, मैंने कभी देखा नहीं, आपके साथ ही देखता हूँ, तो आपको जरा आइडिया मिल जाएगा। एवरेज ट्रू रेंज, और एटीआर हैज गॉन, ये इसके पिछले हाइज के एटीआर हैं 20 और 21 to 25, लेट्स 23 का मीन ले लेते हैं, और नीचे 13, तो यहाँ पे ईटीआर यहाँ पे वापस आया, वापस आया, वापस आया। अब ये यहाँ पे 35 का एटीआर है। वेरी सिंपल डायनामिक है कि यहाँ से भी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। वॉलेटिलिटी एटीआर इक्वालिटी में ही आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज पूरी तरह तो नहीं, बट एटीआर मींस की रेंज बहुत बढ़ चुकी है डेली। अब रेंज कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जितनी रेंज बड़ी होगी उतनी ज्यादा ऑप्शंस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होगी, उतनी ज्यादा ही हम ऑप्शंस का प्रीमियम सेलर या बायर ज्यादा सेलर ज्यादा मांगेगा दोनों साइड्स का। सो व्हेन द वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन हैपेंस, दैट्स द फर्स्ट साइन। उसके बाद आपको सेल सिग्नल की वेट करनी पड़ती है। कभी कभी एक दो बार आप स्टॉप्ड आउट भी होंगे, पॉलीकैप की केस के अंदर, जहां वॉलेटिलिटी सेम हम पॉलीकैप पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। why it is testing so many people including myself is, ये मंथली है, इसकी डेली भी चले जाते हैं,
तो आपने देखा यहाँ से जो यहाँ पे ये एक हाई मूव आई थी, उसमें इसका नॉर्मल एटीआर था 85, जो नियरली डबल हो गया 150। उसके बाद वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन है, ऑल्दो प्राइस ऊपर जा रही है, पर जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं और स्पेशली पुट्स बहुत जल्दी से नीचे गिर रही हैं बिकॉज रेंजेस छोटी हो गई। ये सिंपल दिख वैसे भी नजर आ रहा है, ये कितनी बड़ी बड़ी रेंजेस थी, उसके बाद एक कंट्रैक्ट हो गई, अब ये नए हाई मार रहा है, पर वॉलेटिलिटी में इंक्रीज उतना लेवल का नहीं आ रहा। तो इसी वजह से जो नए हाई बन रहे हैं, ये हाई बना, उसका ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई छोटे होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हाई छोटे होते जा रहे हैं, विच इज अ साइन दैट इट इज टायर्ड। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वी कैन, वैसे ही आपको बिना, जब आप काफी देर से एनालिसिस करते हैं तो आप बिना ट्रेंड लाइन लगाए आपको पैटर्न नजर आ जाते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ एन एंडिंग डायगोनल। टेस्ट करेगा बट इट इज एन एंडिंग डायगोनल। यहाँ से गिरा तो बुरा गिर सकता है, 3200 पे आ, 3500 पे आ, पर जब भी गिरेगा शायद एक बार ये ब्रेक मार के, तभी मैंने लास्ट वीडियो में कहा था हम 5500 भी जा सकते हैं, यहाँ से ब्रेक मार के वापस आ जाए, और वो ज्यादा मुझे लगता है हो सकता है ये 5500 जाए, वहां से लोगों को ट्रैप करे और नीचे आ जाए, दैट कैन हैपन, बट द एटीआर इज शोइंग ये वॉलेटिलिटी है। सो एंड कैसे आपको नजर आता है वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन से। अब यहाँ पे इसके बाद जो सेल सिग्नल आएगा दैट विल बी अ गुड सेल सिग्नल। तो बड़ा बेसिक मैंने आपको समझाया। How to solve mindset problems or hold on to profitable position and cut. Again, this is Dharmendra question है, how to solve mindset problems of hold on to the profitable position and cut early losing position. ये mindset की जो है ये 15 मिनट का नहीं है कि मैंने आप पे वेबिनार किया और मैंने आपको सिखाया, लाइंस लगाई, एक्सेल खोली, इसके ऊपर बाय कर लो, इसके नीचे बाय कर लो, या मैंने आपको कोई सिस्टम दे दिया या स्ट्रेटजी सिखा दी, या मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पे कोई सिस्टम दे दिया। ये माइंडसेट ऐसे नहीं चलता, तभी मुश्किल है। उसी की वजह से जिसका माइंडसेट स्ट्रांग है वो मार्केट में सक्सेसफुल होता है। पैसा नहीं मैं पैसा कमाना इज नॉट द बेस्ट वर्ड, सक्सेसफुल, हैप्पी, कंटेंट, गुड ट्रेड्स, लाइक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पैसा अपने आप ही आ जाता है अगर आपका सिस्टम, माइंड, थॉट प्रोसेस अच्छा हो। अगर आपको जब आप बहुत पैसा कमाते हैं तब आपको कोई ऐसे एक्साइटेड नहीं होता है कि तब आप कहते हो ड्रिंक्स आर ऑन मी, एंड व्हेन यू लूज मनी यू गो सैड एंड क्लोज एंड go in a room and lock yourself and don't come out for 2 days। अगर आपका वो माइंडसेट जब आपका कंट्रोल आ जाता है, then money becomes सेकेंडरी मीन अपने आप आती है, आपको उस पे लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, पर उस माइंडसेट के लिए काम करना पड़ता है, उस माइंडसेट के लिए अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ता है। ठीक है, वो माइंडसेट को चेंज करने के लिए 6 से 8 महीने मिनिमम लगते हैं। मैं अगेन अब फिर आपको लगेगा शायद मैं कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं नहीं कर रहा। मेंटरशिप प्रोग्राम, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ उसके अंदर 25 to 30 आवर के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। ठीक है, 30 आवर्स के वीडियोस आप वन गो में नहीं देख सकते, आपको 1 या 1.5 महीना आराम से देखें, हर वीक एक वीडियो देखें, 2 घंटे देखें, उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, और आपको इतनी सारी नई इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से कि आपका लाइक यूरेका मोमेंट कि यार मैं सारी जिंदगी कर क्या रहा था। जितने भी देर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसको जिंदगी मान लेते हैं, योर ट्रेडिंग लाइफ, कि what was I doing in my trading life? I was so stupid. You will definitely 100% आप ये कहोगे अपने आप को कि I was so stupid because that I can see people, but I can't explain it in like 5 minutes. I can't explain it in tweets because 25 से 30 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियोस है, और 30 घंटे आप वो वीडियोस को जब सुनते हैं, और 4-4, 5-5 घंटे का एक वीडियो है, तो आपको इतनी सारी नई इंफॉर्मेशन मिलती है, इतने सारे आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, और आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, ओवरऑल लाइफ। आई ऑलवेज से लाइफ और जो ट्रेडिंग है वो हैंड इन हैंड चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर आपकी लाइफ, आप अपनी लाइफ में, मैं लास्ट सेशन में भी शायद सेम एग्जांपल दी थी, अगर आप एक रैश ड्राइवर हैं तो आप ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर ही होंगे, तो आपकी डिसीजन मेकिंग रैश है,
आपने आपको लगा मार्केट अब जा रही है ऊपर, आपने बाय कर ली, वो 2 मिनट बाद नीचे आई थी, आप एग्जिट कर गए, फिर आपको लगा नहीं नहीं अब टूटने लगी, आपने सेल कर दिया, वो फिर ऊपर आ गए। इसीलिए जब ट्रेंडलेस डे में लोग बहुत पैसा गवाते हैं, why they lose a lot of money, why they lose a lot of money is because of this kind of a mindset. It's even if you're not an intraday trader, even if you're a positional trader, you'll buy sell buy sell buy sell, you'll do a lot of things, ठीक है? So I mean it's not a one day job, it's उसके बाद 25-30 घंटे के बाद we have like sessions, you know, a group sessions, a person to person session. So I give you 2 to 3 hours one on one that we can interact, talk, you can ask questions based on what you have learned. अब क्या दिक्कत आ रही है, कैसे उसे एड्रेस करने के सारे सॉल्यूशंस ही उसमें हैं, बट फिर भी यू टॉक टू मी, यू इंटरेक्ट विद मी, दिस इज हाउ इट इज डन। बट अगर आप एक्सपेक्ट करो कि इसका क्विक सॉल्यूशन नहीं है, I mean, sorry to burst the bubble, or sorry to, you have to work on it. Simple, इसको टाइम लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी आपकी, मेरे से ज्यादा आपकी, बिकॉज आपने अपने आप को चेंज करना है, मैंने आपको रास्ता दिखा देना है, आपने चेंज करना है अपने आप को। और जो भी मेंटर है, आप जिससे भी कर रहे हैं, एनी मेंटर यू आर विद, whosoever is teaching you, बट मैंने देखा बड़ी दुख की बात है, इंडिया में कोई माइंडसेट की बात नहीं करता। लोग बात करते हैं लाइव ट्रेड्स, लोग बात करते हैं सिस्टम, लोग बात करते हैं इतने में लो इतने में बेचो, बैक टेस्टिंग एंड ऑल दैट, बट नो वन टॉक्स अबाउट द बैक टेस्टिंग ऑफ देयर ओन माइंड। आप अपने माइंड में देखिए आपने कितनी पोजीशंस गलत ली हैं, अच्छे सिस्टम पे भी, बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम होंगे लोगों के, मैं किसी को सही गलत नहीं कह रहा, बट लोग बात नहीं करते माइंडसेट पे, बिकॉज टॉपिक बोरिंग है, टाइम लगता है ज्यादा, बट इवेंचुअली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु मेक मनी आरएसआई से ही पैसे कमा लेते हैं। और कई लोग देखे जिन्होंने छह छह स्क्रीन लगाए हुए हैं और बहुत सारे सिस्टम्स हैं पर पैसा नहीं कमा पाते। क्या रीजन है? माइंडसेट। कल आपने अगर स्क्वॉश का मैच देखा हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लास्ट में वो फोर डाउन एंड ही वन, you know, guy was so calm, so composed, I mean it's fabulous। जो पाकिस्तान का कोच था, जिसको उससे पूछा कि you nearly won 4 points, आप एक ही आपको शॉट चाहिए था, you would have taken gold, तो आपने कि उसने क्या क्या फर्क आ गया, क्या दिक्कत आ गई? He said the other person was very calm and composed and he knew what he was doing. This is the exact words, आप इसको सर्च करके देख लें। वो कहता है he was calm and composed and he knew what he was doing. This is what I mean by mindset। जो बंदा गोल्ड ले गया from losing position or under so much pressure, India Pakistan, and after the match he was so composed, he was so calm, although ठीक है खुशी होती है, उसने अपना एक फ्रेश इमोशंस दिखाए, that is fine, गेम है, सारी दुनिया इंडिया आपको चीयर कर रहा है, आपके लिए देख रहा है, तो आई मीन जस्ट सेइंग, विराट कोहली देख लें, आई लव दैट गाय, he's so good, I mean not because he's a great cricketer, but on and off the field he manages his emotions, his thought process। India versus Pakistan, Melbourne, when he hit that Pakistani bowler, क्या नाम था उसका, I forgot the name, राउफ को उसने 6 किया, उसके बाद बैक पे 6 किया, and we thought कि it's over last year around this time, दशहरा के टाइम के पास था कहीं पे। So again mindset, और कोई नहीं कर पाया और कर भी नहीं सकता था, मेरे ख्याल से इंडिया टीम में उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था जो कर सकता। धोनी क्यों खास है? we grew up in the Sachin era and we thought, I mean personally, जिसने सचिन को देखा लगता था इसके बाद कुछ नहीं है, but then Dhoni came, although Sachin was a better batsman, best batsman ever, things like that, but Dhoni, what does Dhoni do? कभी कभी तो खुद तो कुछ भी नहीं करता, but उसकी mindset इतना strong है। धोनी रिव्यू सिस्टम, DRS जिसको कहते हैं। I'm just drifting off topics, but I'm trying to tell you that mindset, you have to work on it, but one who has mindset in control can become a Dhoni, can become that guy in Scotch, sorry I forgot his name, can become a Virat Kohli, can become anyone, who can become Prime Minister Modi। लोग गालियां निकालते हैं, लोग ट्रोल करते हैं, लोग क्या कुछ करते हैं। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर 4 बार आके स्पीच दे चुका है इंडिया के जब उसने नाम लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज सेड नथिंग, he is just doing his work, he'll answer in a way he knows best, that is mindset, that is like लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, but he keeps on going, he keeps on delivering, that is your mindset, thought process। कितने आप स्टेबल हो इन द वर्स्ट सिनारियोज, एंड मार्केट तो इसमें सबसे ज्यादा आपको टेस्ट करती है। वॉलेटिलिटी एक एक मिनट में
कहीं से कहीं चले जाती है। आपने कॉल ली और बैंक निफ्टी की अच्छी क्वांटिटी आपने 500 की ली, वो 15 मिनट में 350 रह जाती है, या आपने 500 ली 15 मिनट में 700 हो जाती है। दैट इज हाउ इट इज। इफ यू आर कॉट ऑन द रॉन्ग साइड, यू आर गॉन। So, I mean, sadly, a lot of people invest so much money in courses, in tips, in advisories, but they don't invest on themselves. That is the sad part, and that's the reality. You might not like what I say, but that's the reality of life. So, coming back to the question, how to solve mindset mindset problem, and first of all, you have to understand कि कौन सी biases आपके दिमाग में है जिससे mindset की problem आती हैं. For that, you have to work hard on it. Simple as that. Positional view on Tata Consumer, although I'll not take specific question, एक ले लेता हूँ, इसके बाद नहीं लूंगा। अगर लॉन्ग है तो किसी रीजन के लिए ही लॉन्ग होंगे वैसे तो। स्टॉक अगेन, इसलिए मैंने अब स्टॉक इज, ये मैं बात उस दिन भी करी थी, आपको फिर बता देता हूँ। स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकला, 2 बार फेलियर दे चुका है बिकॉज ओवरऑल मार्केट के साथ है और मार्केट कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। 2 स्टॉक्स ने इकट्ठा ब्रेकआउट दिया था, एक हमारे आउटलुक पोर्टफोलियो का स्टॉक है, एक आउटलुक प्रीमियम का स्टॉक है। फॉर द टाइमिंग सैडली आउटलुक प्रीमियम वाला स्टॉक कहीं पे ज्यादा जा नहीं रहा, दैट इज वाई मैंने एट द मनी की ऑप्शन बेची थी, आउट ऑफ द मनी की नहीं बेची थी, क्योंकि मुझे था कि इट कैन टेक सम डेज बिफोर इट मूव्स हायर। दूसरा स्टॉक जो पोर्टफोलियो का स्टॉक था, सेम डे का कॉल्स दोनों, जिस दिन हमने वो टाटा इन्वेस्टमेंट्स था, वो भी सेम साइज स्ट्रक्चर है और ये हमने लिया था 3000 ऑड पे, यहाँ पे लिया था कहीं उसी दिन सेम डे लिया था, 3030 है शायद समथिंग कहीं पे, आई फॉरगॉट, बट इट हैज डन वेल। अब नीचे आ गया, दैट्स फाइन, बट हमने 1-2 दिन के लिए नहीं लिया था। अगेन आप एटीआर को देखें कैसे एटीआर जाती है, एंड देन इट गोस टू रेट। जब ये 90 डिग्री की मूव्स आती हैं, आई सेल वॉलेटिलिटी, बट नेकेड सेल वॉलेटिलिटी मत करें, थोड़ा सा उसमें ट्रिक्स हैं, लर्न करें उसे, एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। ये टाटा कंज्यूमर। Ritesh, when and how to select call sell and put sell while going long and short in trade. इसका कोई hard and fast rule नहीं है, volatility को हम use करते हैं, days to expiry को use करते हैं, that is why अभी मैंने इसीलिए कहा कि जो थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा, रो को छोड़ देते हैं और आगे वाली सेकंड डिराइव्ड ऑप्शन, थर्ड डिराइव्ड ऑप्शंस को, चलो उसका भी मैं अभी नाम, सिर्फ 3 जो 4 आपको पता है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, अगर आपको इनका अंडरस्टैंड करते हो, उनके बेस के ऊपर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो। पोजीशन साइजिंग की बात नहीं कर रहा, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन दैट यू सिलेक्ट योर रिस्क मैनेजमेंट, एंड दैट इज हाउ यू सिलेक्ट टू गो लॉन्ग और टू गो शॉर्ट और टू गो लॉन्ग ऑन पुट्स और वाइस वर्सा, राइट? सो इट्स बेस्ड ऑन दैट। अगेन मैं कई क्वेश्चंस का पूरा आंसर इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज वो काफी डिटेल्ड स्टडीज हैं। आई डोंट नो of the people who are right now here कितनों को वो आता है, कितनों को नहीं। I don't want to spam or bore people जिनको, कई लोग ऑप्शन ट्रेड ही नहीं करते। स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको रफ आइडिया दे सकता हूँ, फुल फ्लैज अंदर नहीं जा सकता। प्रियम, usually Indian markets run a lot on sentimental value, like Diwali period, people buy a lot looking at the current bearish trend. Any thoughts on it? Can we go lower now to give a buying opportunity? Diwali rally bounce. Look, Diwali rallies, Christmas rallies, Thanksgiving rallies, पर आपको overall position marks अपनी इकोनॉमी की भी देखनी पड़ेगी। इंडिया एक्सपेंसिव है, और लुक अगेन बात बाइंग की नहीं है, बात ये है कि आप रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अभी हम 19,500 पे हैं, 20,200 300 से हम नीचे आए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि what are you expecting कि how much rally are you expecting? 200 points, 500 points, 1000 points, 2000 points to 21,500 लेट्स अज्यूम एक्सपेक्ट करते हैं। डाउनसाइड क्या है? 15,200, 15,500, 17,000। सो हम रिस्क रिवॉर्ड के स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं। स्टॉक्स हैव ऑलरेडी रन अप क्वाइट अ बिट, अर्निंग सीजन आ गया है, जो डिसअपॉइंट थोड़ा सा भी करेगा या न्यूट्रल आएगा उसे मार्केट पनिश करेगी। बहुत मार्केट अब उसी स्टॉक को चलाएगी जो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। माइनर आउट परफॉर्मेंस, न्यूट्रल्स,
एंड नेगेटिव तो पनिश होगा ही होगा, न्यूट्रल भी पनिश होगा और माइनर आउट परफॉर्मेंस भी पनिश होगी। मेजर आउट परफॉर्मेंस को ही स्टॉक 15-15, 20-20% और बढ़ेंगे, पर मेजर आउट परफॉर्मेंस का यहाँ पे चांसेस कम होते जाएंगे। रीजन उसका ये है कि कितना आउट परफॉर्म कर लोगे आप। ये मतलब आपने पिछले सपोज लास्ट क्वार्टर यू गेव, पॉलीकैप की बात कर लेते हैं, गेव ग्रेट रिजल्ट, शायद इस बार भी अच्छे रिजल्ट्स आए, बोनस की टॉक है, स्प्लिट की टॉक है, स्टॉक इसलिए खड़ा है, उसमें बहुत सारा है। HCL ने भी ऐसे किया था, टाइटन ने भी ऐसे किया, पर जरा से नंबर खराब आएंगे। एक होता है क्वार्टरली ट्रेंड, एक होता है ये ओवरऑल ट्रेंड। ABB के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे पिछले 1-2 क्वार्टर से शायद, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है मार्केट का और सेक्टर का। बट अब अगर इस क्वार्टर में भी बुरे आए नंबर तो मार्केट विल पनिश इट इरिस्पेक्टिव ऑफ, यू नो। बजाज फाइनेंस चल रहा है, इसी आपकी जो आप बात कर रहे हैं प्रियम, दिवाली में ये होगा, नंबर्स आएंगे, ये होगा, वो होगा। तो बजाज फाइनेंस पहले ही चल रहा है, एक्सपेक्टेशन पे स्टॉक वेट नहीं करता कि रैली आएगी तो चलेगा, एक्सपेक्टेशन पे स्टॉक पहले ही चल पड़ते हैं। आपने बहुत सारे मारुति देख लें, मारुति ऑलरेडी चल रहा है, 10,500 पे चल रहा है, वो ऑलरेडी चल रहा है, और अभी बहुत बाउंस रहता है उसका अगले 2-4 साल में। किसी ने मुझे कहा था, अभी हमने सिल्वर पे बात की थी, सिल्वर से अच्छा मारुति है इस वक्त आपके, अच्छा टारगेट दे जाएगा। जस्ट नॉट एन एडवाइस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट जो जो चलना होता है, ये दिवाली रैली, क्रिसमस रैली, ये सकर्स के लिए होती है। डोंट, सॉरी माइंड, आई मीन डोंट गेट अनॉयड और सैड बाय माय वर्ड्स, दिस इज फॉर रिटेल थॉट प्रोसेस कि आएगी और चलेगा, ये सब कुछ इनबिल्ट होता है। प्राइस, स्टॉक मार्केट्स पहले से ही उसका they take it in there, they're forward expectancy होती है उनकी। So I don't look at much into it। आ जाएगी 200-300 की लो से तो आ भी गई थी, फिर हम नीचे आ गए। अगेन इट डिपेंड्स आप किस तरह की माइंड की थॉट प्रोसेस है आपकी, कितने आप 1 साल का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं, 5 साल का चल रहे हैं। 1 साल के अंदर भी, 5 साल के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो बिल्कुल अभी भी लैगार्ड हैं। IEX नहीं चला, GNFC नहीं चला, जिनको मैं ट्रैक करता हूँ। कई स्टॉक्स बहुत ही ऊपर चले गए, जैसे परसिस्टेंट, LTIM, LTTS, ऐसे स्टॉक्स बहुत ऊपर चले गए। पॉलीकैप, ABB भी काफी राइज कर चुका है, कमेंस काफी राइज करके नीचे आ गया है, 2000 डॉट हाई लगा के अब 1700 है। ब्लू आइट स्टॉक था अभी 3 महीने पहले ही, हाइड्रोजन, EV जनरेटर्स, पता नहीं क्या क्या की थी इसके अंदर, केमिन्स के अंदर। अब तो आज क्यों इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कल फिर थीम्स चल पड़ेंगी। सो ये सिक्लिकल सा है, वन साइज फिट ऑल नहीं है। आपको इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी देखना पड़ेगा। अगर FI सेलिंग के मूड में, तो कोई दिवाली रैली नहीं, कोई दूसरी रैली नहीं। हाँ, लो से हम 400 पॉइंट ऊपर चलेंगे, आप कहेंगे दिवाली रैली, तो इतना तो चलता है। हम कौन से लेवल्स पे हैं, हम 19,500 से फिर 19,900 चले जाएंगे, आप कहेंगे दिवाली रैली, तो 300-400 पॉइंट का ऊपर से फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल स्ट्रक्चर वर्ल्ड ओवर का अच्छा नहीं है, इंडिया एक बहुत ऊंचाई पे खड़ा है, अभी भी हम 19,500-600 पे हैं, 4,500 फ्रॉम ऑल टाइम हाई। तो डाउनसाइड रिस्क बड़ा है, अपसाइड दैट डजंट मीन कल से सेलिंग शुरू हो जाएगी, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ एज अ रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर आज कोई पॉलीकैप खरीद रहा है फॉर एग्जांपल 5,300 पे, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में? 10,000? आई मीन डजंट सीम रियलिस्टिक, राइट? स्टॉक जाए नहीं जाए ये नहीं मुझे पता, मैं जस्ट सेइंग। हाँ, अगर इस रैली के अंदर जो नहीं चला वो वैसे ही वीक है। अब IEX मुझे कई बार वो सिग्नल देता है, वो चलता नहीं है। A lot of people get in, I mean we get in and then doesn't work. So again it's ये रैलीज आती रहेंगी छोटी मोटी, पर हाँ, को थोड़ा बड़ा देखना पड़ेगा कि अभी रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। अभी अगर आपने आज पोर्टफोलियो बनाना हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड से? मिड कैप का अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे लेट्स अज्यूम, तो अपसाइड 20%, डाउनसाइड 70%, 60%, क्योंकि मिड कैप गिर जाते हैं। अगर ट्रेंड बदल जाए तो यहाँ से हमने मिड कैप्स को देखा है, मतलब लक्ष्मी मशीन वर्क, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, अभी 14,1,000 15,000 के पास है, 20,000 भी जा सकता है। बट जब कोविड के टाइम पे वो 2,100 आ गया था, 2,200, 1,800, सॉरी 1,800 समथिंग आई थिंक। बहुत सारे स्टॉक, लिंड इंडिया थाउजेंड्स के अंदर था, वो 5,000 चला गया। तो अब आप यहाँ पे 5,000 पे बाय करेंगे उसे, क्या एक्सपेक्ट, शायद 6,000 चले जाए। बट अगर यहाँ से करेक्शन लार्ज स्टार्ट हो जाती है, कोई वर्ल्ड में इवेंट हो जाता है, तो डाउन साइड तो 50-50, 60-60% है।
तो वहां पे रिस्क है। आउटलुक पोर्टफोलियो के अंदर भी हम जो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं वो ओवरऑल पोर्टफोलियो का 2%, 1%, 3%। आई एम नॉट गोइंग फुल इन वाला टाइम नहीं है। यस, स्टॉक्स आर गुड। अभी भी पोर्टफोलियो ने पिछले हफ्ते 1.2% की रिटर्न दी है, ऑल्दो वी आर नॉट सेलिंग। शायद 2-3 हफ्ते बाद वो माइनस में भी आ जाए। अगेन वी आर नॉट, अभी हम एक्यूमुलेट करेंगे लोअर एंड्स के ऊपर। अभी तक तो ठीक ही लग रहा है सब कुछ, बट मैक्रो वर्ल्ड लेवल पे इतना अच्छा नहीं लग रहा। सो देयर इज ऑलवेज रिस्क, so you should be wary of that. दिवाली रैलीज, बाउंसेस, सेंटिमेंट्स आते रहेंगे। ये सेंटिमेंट्स तो सारे सीएनबीसी बनाता है, मैं तो देखा नहीं बहुत साल से। वही दिवाली वाला दिन कपड़े पहन के आ जाएंगे एथनिक, और फिर किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ। ये उनके लिए सेंटिमेंट्स होते हैं। रियलिटी सिर्फ ट्रेडर के लिए ट्रेंड है। how you see the trend, how you manage the trend and how you exit. आपका माइंड स्ट्रांग है तो आपको लॉस का ट्रेड मिले और आपको लगता है कि ट्रेंड बदल गया है, आप एग्जिट कर जाते हैं या उसे हेज करते जाते हैं। सो Sugandha, lot of time we see price still going up despite RSI divergence. How do I identify sell signal in such a scenario? Look, RSI overhyped है मेरे ख्याल से। RSI का मैथमेटिक्स आपको अगर डीप डाइव करें, जब मैं पीछे मैंने कहा था कि मैं ना एक टेक्निकल एनालिसिस का फ्रॉम ए टू जी फ्रॉम स्क्रैच मैं एक कोर्स बनाना चाहता हूँ, पर मुझे ज्यादा लोगों ने उस पे लिए आई डिडंट गेट अ लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन इट, तो मैंने वो उसको आगे बात बढ़ाई नहीं, बिकॉज टाइम बहुत लगेगा और इफ नॉट मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड आई वोंट डू इट। सो आरएसआई इज दिस स्पीड, कितनी स्पीड से गिर रही है या बढ़ रही है। ऐसे होता है कि जब अब ये जो है, ये वाली आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये टाटा इन्वेस्टमेंट भी रहता है जो स्टॉक खुला है, अब वो ये किसी पे भी वैलिड है। तो ये आरएसआई है ना, आरएसआई ये डेली की है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा नॉइज ज्यादा होगी, इस पे नॉइज कम होगी, पर ये स्पीड है। ये अब ये जो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, ये स्पीड थी आरएसआई की, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ गया, इसकी स्पीड ये आपको नजर आ गई, ठीक है। अब जो ये तीसरी वेव है सबसे बड़ी है, तो ये आपको स्पीड नजर आ गई। दिस इज ऑल द स्पीड। तो जब डाइवर्जेंस क्या है, जब सेकेंड टाइम में स्पीड कम हो जाती है तो वो डाइवर्जेंस है, और कुछ नहीं है वो, सिंपल एज दैट। जब स्पीड, वो ही डाइवर्जेंस आपकी मिलती है, हिडन डाइवर्जेंसेस। तो इसलिए, और इट इज, ये डेटा के पुराने डेटा, पिछले 14 बार्स की डेटा के ऊपर बेस है। तो आई मीन ऑसिलेटर्स टेल यू वेयर यू आर, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट यूज ऑसिलेटर्स। मैं अपने काम में तो ऑसिलेटर यूज ही नहीं करता। कभी कभी स्टोकेस्टिक यूज करता हूँ, वो भी मुझे जस्ट सी द आइडिया वेयर वी आर, उसके बेस पे मैं ट्रेड नहीं लेता। क्योंकि अगर स्पीड कम हो गई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बेरिश हो गया, ठीक है। स्पीड कम हो गई, ठीक है, अगली बार अब ये मॉन्स्टर्स रैली आई, अगली बार शायद रैली उतनी फास्ट नहीं आए, हाँ वो डाइवर्जेंस हो गई आपकी, और कुछ नहीं। अब स्टोकेस्टिक मुझे नजर आ रहा है कि ये ओवरबॉट है, पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओवरबॉट ही था, नए हाई बनते रहे। यहाँ पे ये ओवरबॉट हुआ, ये ओवरबॉट हुआ, ये लुक, अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट ऑसिलेटर्स, बट दे कैन डिसीव यू। अब ये इसकी स्पीड ज्यादा थी, ये कहाँ तक चला गया, इसकी स्पीड उस हिसाब से कम है, वहां तक नहीं गया। इट्स ऑल अबाउट द स्पीड इन दैट। आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, बट यू नीड टू लर्न प्राइस के बाद ऑसिलेटर्स को मैं जो यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ जस्ट टू सी वेयर वी आर इन द ओवरऑल पिक्चर, जस्ट एन एडेड लेयर, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। Any simple method to follow for option buying? Options are not simple, options are complex. देखो कोई simple method नहीं है, बिकॉज बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको आपको नजर रखनी पड़ती है। अब अगर आपको थीटा का नहीं पता, आपको डीके नहीं पता, और आपने वीकली ऑप्शन ले लिया है, और आप कभी कभी मार्केट आपके हिसाब से ठीक हो जाएगी, बट आप यू वोंट बी एबल टू मेक मनी बिकॉज डीके हो गया। देयर इज नो सिंपल वे, यू हैव टू लर्न इट। देयर इज, मार्केट सिंपल नहीं है। सिंपल में से वो, या तो मैं नहीं कहता सिंपल में आप पैसे नहीं कमा सकते, सिंपल में आप पैसे कमा सकते हैं, बट आपको उस जो भी आप एसेट या ऑप्शन की ट्रेड करें, आपको उसके डायनामिक्स पता होने चाहिए।
उसके बेस पे आप बना सकते हो। It's a generic सा क्वेश्चन है, सिंपल, आई डोंट थिंक देयर इज एनी सिंपल वे, आपको प्रोसेस को लर्न करना ही पड़ेगा। But the P ratio of Nifty isn't too high compared to the historical value. Nifty में only 50 stocks हैं प्रियम, रेस्ट ऑफ द मार्केट्स मिड कैप्स देखें कहाँ चले गए हैं, स्मॉल कैप देखें कहाँ चले गए हैं। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट आपको एक्सपेंसिव नहीं लगती, कोई स्टॉक ले लें आप। पी रेशियो, हिस्टोरिकल्स, अगेन स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट करना इजी है, बट जब आपकी लास्ट, और आप, प्रियम का क्वेश्चन है, बट द पी रेशियो ऑफ निफ्टी इजंट टू हाई कंपेयर्ड टू हिस्टोरिकल वैल्यू, देन हाउ इज इट एक्सपेंसिव। आप सिर्फ पी रेशियोज को चार्ट पे कंपेयर ना करें। सपोज ये पी रेशियो का चार्ट है आरएसआई, तो ये आप कहेंगे ये पिछली बार तो यहाँ था, इस बार तो यहाँ है, अभी ये रास्ता यहाँ जाने को है, बट आप ओवरऑल स्ट्रक्चर भी तो देखेंगे ना, कहाँ से हम आ रहे हैं, आगे मैक्रोस दुनिया के क्या है, जब लास्ट टाइम इस पे पी थी तब दुनिया में ओवरऑल क्या हुआ था, हम इतनी दुनिया की प्रॉब्लम्स के बाद भी यहाँ पे हैं, इतने हाई पी पे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड क्या है। तो इट्स नॉट जस्ट सिंपली कि यार पी पिछली बार 20 थी, इस बार 18 है, मैक्सिमम 22 गई है, इस बार 18, तो हम फिर से 22 पे पहुंच सकते हैं। ये बात करने के तो ये चीज अच्छी लगती है, बट रियलिटी में वी हैव टू लुक एट अदर फैक्टर्स एज वेल, राइट। और आप सिर्फ निफ्टी में तो 50 स्टॉक है, आई थिंक 50 है 51, आई डोंट नो 50 और 51, बट रेस्ट ऑफ द मार्केट को क्या कहते हैं आप, स्मॉल कैप्स जिस तरह ऊपर गए हैं उसको क्या कहेंगे आप। मिड कैप का चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी कोई भी मिड कैप वाला चार्ट देख लेते हैं, वीकली लगा देता हूँ, तो इसको क्या कहेंगे आप, चीप कहेंगे इसे, वी आर हियर, तो हम क्या इसे चीप कहेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स देख लेते हैं, चीप हमेशा, चीप या वैल्यूएशन हम हमेशा कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, सिर्फ नंबर के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स कैन फूल पीपल, तो आप किसी भी तरह से आप देख लें, ये हम पिछले लेवल के पास हैं, पर कहाँ से आए हैं और दुनिया का सिनारियो क्या है। स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर दुनिया में जैसे कोई बहुत सारी कंपनीज हैं जो फॉरेन के ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, आईटी कंपनीज फॉरेन के ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत बड़ी और छोटी, कल वहां पे स्लो डाउन आता है। अब मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, यूएस में मैंने एक वीडियो कल शेयर किया डेट स्पाइरल वाला, अगर आपने वो वीडियो ट्विटर पे देखा हो, नहीं हुआ तो देख लेना, अच्छा वीडियो है। तो वो क्या कहता है उसकी, वो दे आर सेइंग दैट वी कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम, वी हैव टू, हमको स्पेंडिंग अपनी कम करनी पड़ेगी। स्पेंडिंग किस पे कम होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्पेंडिंग बहुत सारी चीजों पे कम होगी, कंपनीज की जब स्पेंडिंग कम होगी जॉबलेसनेस बढ़ेगी, जॉबलेसनेस बढ़ेगी, जॉबलेस बढ़ेंगे, so what will happen there, I mean कंपनीज के नंबर्स कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल कम डाउन, राइट। स्लो डाउन के साथ इंडियन कंपनीज को ऑर्डर्स कम मिलेंगे, बहुत छोटी कंपनीज जो यूएस यूरोप के ऊपर फुली डिपेंडेंट है, अगर आप उनकी क्लाइंटल देखें, मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कर रहा, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज किसी कंपनी के सिर्फ 2 ही क्लाइंट है, एक यूरोप में एक इंडिया में, और वो यूरोप वाला 50% है, इंडिया वाला 50%, लेट्स अज्यूम। तो 50% क्लाइंट वाला आज कहता है कि नहीं मेरी बस है, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता, या उसकी पेमेंट स्लो हो गई, ऐसी अगर प्रॉब्लम्स आए तो स्मॉल कैप इंडेक्स को क्या होगा, तो एक्सपेंसिव नहीं है इस वैल्यूएशन पे। क्या आप पोर्टफोलियो बनाएंगे यहाँ पे, सिंपल है, एक्सपेंसिव और चीपर की बात को छोड़ दें, आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो, अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप करेंगे तो ये चीप है, अगर आप एक बार सोचेंगे तो एक्सपेंसिव है, सिंपल लॉजिक है। पी को छोड़ दें निफ्टी की 2 मिनट के लिए, यहाँ पे क्या आप पोर्टफोलियो, हाँ यहाँ से ये नंबर, ये नंबर क्या है, 5862, ये 6000 चले जाएगा, 6200 चला जाएगा, 65 चला जाएगा, डाउनसाइड क्या है, अगर ये वापस यहाँ आ गया 3800, अपसाइड तो लिमिटेड है आप, और उसमें जरूरी नहीं कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, शायद आप में 10 स्टॉक्स में से 2 या 3 या 4 चले जाएं, और उनमें से बाकी, और अगर सारे नीचे आ गए तो आपका पोर्टफोलियो क्या रह जाएगा। सो फॉर अ 10% रिटर्न यू आर रिस्किंग 50% ऑफ योर कैपिटल, इजंट दैट एक्सपेंसिव। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है।
पीस को छोड़ दें, स्टेटिस्टिकल टूल्स को छोड़ दें, आप साइकोलॉजिकल बात करें। अभी अब सेंटिमेंट की बात हुई थी, ये सेंटिमेंट में आप यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएंगे? विल यू मेक अ पोर्टफोलियो? अगर आप बनाएंगे तो ये चीप है, अगर आप नहीं बना सकते तो एक्सपेंसिव है, वेरी सिंपल। ऐसे ही सारे सोचेंगे। आपको लगा मेरे एक के सोचने से क्या होगा? आप ये चार्ट सबको दिखाएं, जितने स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के अंदर, सबको दिखाएं, उनमें से कितने लोग यहाँ और इन्वेस्ट करना चाहेंगे। कई लोग तो कहेंगे यार यहाँ पे अगर ये चार्ट यहाँ पे 10 लाख लोग देख रहे हो, उनमें से 5 लाख लोग शायद ये सोचें कि यार म्यूचुअल फंड में मुझे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो वो चीप हुआ कि एक्सपेंसिव हुआ? सिंपल लॉजिक है। So I won't go deep into ये मेट्रिक्स, पी रेशियो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, जो कि आपकी बात गलत नहीं मैं कह रहा, मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पोर्टफोलियो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और जो पिछली बार जब हुआ तो वर्ल्ड में क्या हो रहा था, यूएस कितना तब ग्रोथ में था, वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं? अभी भी हम एक वॉर में है। अगर सप्लाई लाइंस आज सेट हो जाती है तो आपकी इन्फ्लेशन कहाँ चली जाएगी? there's a lot of questions that need to be answered when comparing something. So what I mean is जब भी आप कुछ कंपेयर करते हैं तो बाकी चीजें भी देखा करें, सिर्फ एक पे नहीं रुके। Is the theory of gold and equities have inverse correlation? अभी प्रूव कर लेते हैं ट्रू है या फॉल्स है। कुश का क्वेश्चन है, is the theory of gold and equities have inverse correlation? अभी प्रूव कर लेते हैं तो आपके सामने प्रूव हो जाएगी, और उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट भी बताऊंगा। ये तो आपकी इक्विटीज है वीकली पे, US 500 इज S&P 500, इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं गोल्ड के साथ। अभी तक तो इन्वर्स नहीं लग रही, ठीक ही लग रही है। ये जब ये ऊपर जा रहा था तो ये फ्लैट थी, जब नीचे आ रहा था तो ये भी नीचे आ गई, ऊपर जा रहा था ये भी डिफरेंस है। आई डोंट थिंक देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन और कोरिलेशन हमेशा इससे अच्छा कोरिलेशन क्रूड ऑयल के साथ है। चार्ट ने -40 ने चार्ट को बर्बाद कर दिया, बट एनीवे थोड़े जाते हैं। ये कंपैरेटिवली बेटर कोरिलेशन है। अभी ES इस वक्त ड्यू टू वॉर एंड अदर रीजंस थोड़ा सा इसमें फर्क पड़ा है, पर यूजुअली पहले ही होता था कि क्रूड पहले हाई मारता था और ES बाद में हाई मारती थी, तो अभी वो थोड़ा सा कोरिलेशन ही है। बाकी कोरिलेशन ये नहीं होता कि आज अगर आज क्रूड ने हाई मारा है तो आज ही गोल्ड ने फॉर एग्जांपल उसी वक्त मारा है। ये 4 से 5 महीने का आगे पीछे भी हो सकते हैं। सो डोंट गो मच इनटू कोरिलेशंस, अदर थिंग्स। सिंगल पे काम ना करें। Ditesh, the same mindset caught people in October 2021. Then I didn't get that question, and then market kept falling. Same mindset? Which mindset? Diwali rally wala, I guess. If you're trying to say, uh, yeah. I mean, again, look. अगर आपको मेरे को 20 साल हो गए ट्रेड, 20+ साल हो गए ट्रेड करते हुए इंडियन मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में 14-15 ईयर्स हो गए, 13 ईयर्स। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, जो रिटेल है ना माइंडसेट के साथ, वो इवेंचुअली रिटेल विल लूज मनी। अगेन बड़ी दुख की बात है कि लोग अपने पे काम नहीं करते, पर बार बार अपने जीरोधा अकाउंट या कोई भी अकाउंट को टॉप अप करते रहते हैं। क्या होता है, 4 साल आपने किसी ने 5 लाख रुपए डाला फॉर एग्जांपल, उसने थोड़े से 5 लाख के 6.5 लाख हो गए, 7 लोग गए, उसको लगा मेरे को आ गया अब काम करना, from 5 lakh it goes to 7 lakh, he thinks I have made it। फिर वो थोड़ा सा पहले वो थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होता है, कम बायस्ड होता है, आराम से चलता है, फिर उसको लगता है कि मुझे काम आ गया, तो उसने अब वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है,
डिसिप्लिन कम हो जाता है कि अब तो काम आ ही गया, तो फिर वो ही मेक्स मिस्टेक, इवेंचुअली वो 5 लाख का, 6.5 लाख का, फिर 5 लाख, 5 लाख का, 3 लाख, 3 लाख का, 2 लाख, आखिरी 70-80 हजार हो जाता है, वो गिव अप कर जाता है। जब वो 5 लाख का 2.5-3 लाख हो जाता है, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लग पड़ता है, एफएनओ छोड़ देता है, ऑप्शन छोड़ देता है, इन्वेस्टर बन जाता है। वो मिड कैप्स लिए होते हैं, मिड कैप्स भी धीरे धीरे ड्विंडल होने लग पड़ते हैं, क्योंकि लोगों का शौक भी वही है ना, सुजलॉन, जेपी पता नहीं लिस्टेड है कि नहीं, जेपी इंडस्ट्रीज क्या है, जयप्रकाश एसोसिएट्स, IDFC, मतलब मैं बुरा नहीं कह रहा किसी को, लोगों को शौक भी छोटे छोटे स्टॉक्स का है, जो मतलब दिखे कि मेरे को 10,000 स्टॉक है, चाहे वो 10 रुपए का ही हो, वो बॉश नहीं लेंगे, वो हनीवेल ऑटोमेशन नहीं लेंगे, वो अच्छे स्टॉक्स नहीं लेंगे, क्वालिटी स्टॉक्स नहीं लेंगे, वो यही कूड़ा करकट ही है वैसे ये। चलिए आपको अच्छे लगते हैं तो अलग बात है, GMR या ऑल दैट यही लेंगे, उनके स्टेटमेंट निकालते हैं उसमें दिखते हैं 10,000 ये है, 25,000 वो है, उसको लगता है कि ये अगर 25,000 मेरे पास शेयर है आज 10 रुपए का, अगर ये 100 रुपए हो गया तो मेरे को कितने पैसे बन जाएंगे, उनको ये लगता है कि 19,000 वाला 50,000 थोड़ी हो जाएगा, बट उनको ये नहीं रियलाइज होता कि वो 10 रुपए वाला 1 रुपए भी रह सकता है, पर 19,000 का बॉश 1,000 नहीं रह सकता, स्प्लिट से रह सकता है, वैसे नहीं रह सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। बैंकरप्ट हो जाए अलग बात है, जिसका कोई चांस नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग। एमएनसी जो लार्ज एमएनसी है आपके, जिलेट है आपका, बायर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, GMM फॉडलर अच्छी कंपनी है, ऐसी मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, ये कहीं नहीं जा रही, ये वॉलेटाइल हो सकती है, जा कहीं नहीं रही, बट आपका सुजलॉन है, आज आई थिंक किसी ने मुझे कहा 25 रुपए हो गया, मैं इसको 25 पे भी ना लूं, मैं इसको 5 रुपए में भी ना लूं, ना मैंने लिया। So again it's a mindset problem, ये buying भी mindset problem है, लोग कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेंगे हार्ड अर्न मनी में। मैं ये mindset की एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि लोग ओवरऑल बात कर रहा हूँ, हमने भी किया होगा, हमारे घर वाले भी करते हैं, कुछ आपने देखा भी होगा, सब्जी वाले से बार्गेनिंग करेंगे, मैकडोनल्ड्स पे 1 मिनट में कुछ उनको कोई टेंशन नहीं होगी, सब्जी वाले से 5 रुपए बचा के दे विल बी वेरी हैप्पी। कई लोग टोल बचाने के लिए अपनी गाड़ी के टायर खराब कर लेते हैं, गड्ढे वाली रोड से निकलने, टोल 20, 25, 50 बचाने के लिए। दिस इज द माइंडसेट, दिस इज रिटेल माइंडसेट की बात समझ रहे, दिस इज द रिटेल माइंडसेट कि मतलब छोटी छोटी बचतें, FD से कभी कोई अमीर नहीं हुआ, नो वन हैज गॉट wealthy with the savings account. Name me one person who has got wealthy with a savings account. You can't, because inflation will always beat you. फिक्स्ड रेट किससे बनता है, टू बी मतलब इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ऊपर, 1% ऊपर, 1.5% ऊपर, कभी कभी इन्फ्लेशन उससे ऊपर चले जाती है। यू विल नेवर बी, यू विल हैव मनी, फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा होगा आपके पास, बट आप यू कांट बी वेल्थी। वेल्थी किससे बने, रियल एस्टेट से, स्टॉक से, बॉन्ड से कभी कोई वेल्थी नहीं बनता, बॉन्ड ट्रेडर्स वेल्थी बनते हैं ट्रेड करके, बॉन्ड से कभी कोई वेल्थी नहीं बना, बिकॉज यू आर ऑलवेज बिहाइंड। सेम रिटेल माइंडसेट भी सेम ही है, इट्स सेम, इट्स अगेन रिटेल माइंडसेट, कैपिटल नहीं। मैंने देखा लोग लाख रुपए स्टार्ट करके 50 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं, बट माइंडसेट की बात हो रही है। यू आर नॉट डिसअपॉइंटिंग मी प्रियम, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई मीन, यू डोंट, दिस इज नॉट अ गॉस्पेल, आप लोगों को मानने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ हम दिस इज अ चिट चैट, मैं कोई आपको सिखा नहीं रहा कुछ, आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहा हूँ आपको। आप शायद के बहुत सारी फील्ड्स में आप लोग मेरे से वे बेटर होंगे, ये मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बात कर सकता हूँ, आप शायद कोई, आप में से कोई डॉक्टर होगा, कोई लॉयर होगा, कोई इंजीनियर होगा, किसी की भी और फील्ड होगी जिसमें आप परफेक्ट होंगे, so that's fine, I mean we are all here to learn. How to pick stocks for trading, EMA, SMA, volume, what factors do you use? I don't use EMA, I don't use SMA, I don't use oscillators, as I said, I don't use volume to pick up. मेरा अपना एक स्ट्रक्चर है, मेरा अपना एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है, जो मेरा फाइल में पढ़ाता था। मैं सिर्फ प्राइस को देखता हूँ, ये सारे डिराइव होते हैं, EMA डिराइव्ड होता है प्राइस से, तो ये ऑलवेज आपको पीछे रखेगा, 10 दिन की मूविंग एवरेज, 20 दिन की मूविंग एवरेज, 200 दिन की मूविंग एवरेज, तो ये आपको हमेशा पीछे रखेगा। वॉल्यूम एक कैंडल खत्म होने के बाद, चाहे वो डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे कुछ,
तो मैं हाँ वॉल्यूम को मैं देख लेता हूँ, हेल्प्स मी आउट सम टाइम, बट डिसीजन मेकिंग के लिए मैं पिकिंग स्टॉक पिकिंग के लिए मैं यूज नहीं करता। कोई लोग करते होंगे मुझे पता नहीं, मैं पर्सनली नहीं यूज करता। For someone with a full-time job, what would be your recommendation, a way of trading? For a person with full-time job, he shouldn't do trading. He should, I mean, intraday, that is short term. Options बिल्कुल ना ट्रेड करें फुल टाइम जॉब वाले। अगर आप एफएनओ आप कर सकते हैं तो पोजिशनल एफएनओ ट्रेड करें, पोजिशनल एफएनओ से, और उसको हेज करें प्रॉपर्ली, ताकि अगर आप एक दो दिन ना भी हो तब भी आपको कोई ज्यादा रिस्क ना हो। In Australia, we say if shit hits the fan, then you won't be losing your capital. So I think again, आउटलुक प्रीमियम में मैं एज से आपको मैं ट्रेड देता हूँ, आप ट्रेड लेते हैं, सेम रेप्लिकेट करते हैं, उसमें मैं कुछ सिखाता नहीं हूँ। मैं अपनी हेजेस जो भी है 100% शेयर करता हूँ। आप उसको एग्जीक्यूट उसी टाइम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपके लिए चैलेंज होगा। अगर आप सारा टाइम, हाँ ये है कि जैसे आपको आता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई वन ऑफ द स्टॉक्स बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है तब भी उसे छोड़ दें, उससे फाइट ना मारे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कहा कि आप 100 रुपए पे चीज लें और वो 102 हो गई है तो छोड़ दें उसे। अगर किसी ने मेरे से उस दिन पूछा था, मैंने एक पुट बाय करवाई थी निफ्टी की 44,500, 500 कुछ रुपए पे, और वो नीचे आ गई अब, नहीं 400 कुछ पे, तो 480-90 पे शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट, लेट्स अज्यूम 480-90 बाय कराई 85 पे शायद, तो वो 510 हो गई। तो किसी ने मेरे से पूछा कि शुड आई बाय इट नाउ, आई सेड वेट कर लो, इट केम बैक, नहीं भी आती तो मैं नहीं चाहता कि आप स्टॉक्स के पीछे भागें, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ट्रेड। अबाउट आउटलुक प्रीमियम आई एम सेइंग, आउटलुक प्रीमियम में सबसे बड़ी चैलेंज ये आता है कि आप एग्जीक्यूट कर सकें तो आप करें, नहीं तो आउटलुक प्रीमियम का थोड़ा सा ये फायदा कि अगर आप 5 मिनट बाद भी एग्जीक्यूट करें चलेगा, स्पेशली जहां हेज है। बिकॉज फॉर एग्जांपल मैंने कमिंस 1700 पे लिया है और 1705 हो गया है, और पर मैंने कॉल बेची हुई है, तो आपकी कॉल भी महंगी बिक रही है 1-2 रुपए, तो चलता है इतना, so don't stress about it. That's it about your question. How do you prioritize technical trade execution and mindset? What is prioritize? I didn't get the question. If you can explain it to me. IT looks strong, Sugandha. I mean, comparatively stronger. Tech Mahindra is my bet here. That has comparatively lower risk and has come down quite a bit. हाँ, that is, मैं ज़्यादा देखा नहीं है, पर मैं आपको 1 second. टेक महिंद्रा 1200 पे आ गया, which is a very good level if one wants to buy. बाय सिग्नल आया नहीं है, मैं बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट 1320 से 1200 आ गया, 1210-20 जहां क्लोजिंग हुई है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर। अगेन प्रॉब्लम है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से फिर से बढ़ते हैं या नीचे नहीं आते तो प्रॉब्लम आईटी में आएगी, बिकॉज ग्रोथ स्टॉक्स हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जो चांस है, बिकॉज यूएस 5 ईयर 10 ईयर 20-30 ईयर ऑल आर राइजिंग, सो वहाँ चैलेंज आएगा, बट कंपैरेटिवली सेफर बेट। बाकी सारे सेक्टर्स थोड़े से चल चुके हैं। मैं फार्मा को देख रहा था, फार्मा को मेरे ख्याल से सिर्फ एक एल्केम मुझे दिखा कि जो अभी नहीं चला, शायद हम उस पर ट्रेड करें ट्यूसडे को। एल्केम इज द ओनली स्टॉक, और वो बाउंस भी तैयारी में लग रहा है, बाकी सेक्टर के हिसाब से नीचे भी काफी आ चुका है। बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे प्रॉब्लम में है, सारे मतलब ऊपर जा चुके हैं। सो आई थिंक अगेन सेक्टर बाय सेक्टर मैंने अपने सेक्टर्स बताए थे, बट अगर गिरेगा सब कुछ गिरेगा, चलेगा सब कुछ गिरेगा, चलेगा तो चलेगा, तो सब कुछ जरूरी नहीं चलेगा, बट गिरेगा तो सब कुछ गिरेगा, सो हैव टू बी लिटिल कॉशियस। बट टेक महिंद्रा इज माय कंपैरेटिवली लेस रिस्क वाली बेट है। बाकी परसिस्टेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, एलटीआई में बहुत अच्छा लगता है, पर वो चल चुके हैं। अब उस दिन मेरे ख्याल से परसिस्टेंट गिरा, आई हैवंट सीन द प्राइस, आई विल सी कहां पे है। या अभी भी patterns are not very beautiful and persistent. I will not buy here. I'll wait. LTIM, LTTS पे मेरा all time favorite stock है, LTIM भी गिर गया है, LTTS मेरा favorite है,
again it's run up quite a bit. I'm not very comfortable buying here. मैं LTTS को यहाँ buy करूँगा 4100 41 पे भी नहीं करूँगा to be honest. अगर selling आती है, नहीं तो मेरे से ये है कि I don't run after stock. अगर मेरे zone से निकल गया तो निकल गया. We are not trading persistent in premium for a while. We are not trading LTTS for a while. हम यहाँ से ट्रेड करते थे, इसे 2900 भी आ गया था शायद एक दिन. ये यहाँ से ये इन दिस रेंजेस से हम ट्रेड करते रहे हैं इसको, LTTS को. सारी रैलीज हमने ली है. इस लेवल के बाद ये बाहर चला गया मेरी रेंज से तो मैंने छोड़ दिया. मैंने खुद यहाँ पे एग्जिट किया था 4260 4300 पे. अब ये मेरी रेंज से बाहर है, वापस आएगा. अगेन कैन कम एंड टेस्ट दिस 4300. वहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, बट स्टिल आई कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इट विद अ गुड हेड, गुड लॉन्ग वॉलेटिलिटी काइंड ऑफ हेड. सो दैट्स माय टेक महिंद्रा कंपैरेटिवली बाकियों से थोड़ा सा अच्छा. The US government avoided shutdown. Wasn't that expected? Because shutdown होना rare chances. The market will still rarely की जगह rally होगा I think. Again पता ही था stock ऐसा होगा नहीं कि, but look, macros is not good. Debt is becoming really problematic. Because वो यूक्रेन को एड बंद नहीं कर रहे, that means there is more problems coming. A lot of things will happen. I am not very bullish in markets from here on जब तक macro stable नहीं होते. There is lot many news in the India के बात करें, because you are India traders in India. Nifty 19,200 के पास आ सकती है. That will be make or break. Someone said, I don't think it will break 19,200 pretty easily if it comes. वहाँ से we can rally towards back to 19,600, 700, 900. 19,200 अगर टूट गया, weekly पे closing आ गई, then India market is in trouble. With elections, people expect a lot of things that might keep the market stable. मेरा अपना opinion है, I might be wrong. There is the high probability that Prime Minister Modi will come, but even if he comes back, market will still come down, and that happens. Manmohan Singh के साथ भी यही हुआ था. Second time maybe rallied and then fell, but I think India comparatively better story है. But when FI starts selling, and you see इधर FI का number रोज बड़ा number है, they are not buying, they are selling. उनकी अपनी घर की problems हैं, and US dollar, USD INR वाली दिक्कत में भी they are not making a lot of money. So I mean, hold the portfolios that you want to hold for 4-5 years, 6 years. अगर अच्छी companies को hold करें, कूड़ा करकट निकाल दें. मेरी तो यही सलाह है. मैंने निकाल दिया सारा. मेरे पास कूड़ा करकट था नहीं, बट जिन कंपनी से मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जैसे मैं अंडर 100 वाले स्टॉक्स लेता नहीं. आपने देखा होगा मेरे स्टॉक सारे एक्सपेंसिव वाले ही होते हैं. 5,000, 2,000, 3,000, 10,000, 19,000. MRF भी लिया था एक टाइम पे. बट जो आपको लगता है कि कूड़ा करकट है, वो निकाल दें. अभी मेरे पास सिर्फ एक कूड़ा करकट वाला स्टॉक सिर्फ IEX है. दैट इज हाउ इट इज रिएक्टिंग राइट नाउ. बट आई एम सेलिंग ऑप्शंस every month, so my average has come down under 100. Apart from that, I don't have anything. GNFC and IEX are the two stocks that are not performing. PSU banks में track नहीं करता apart from State Bank of India, so I don't have any view on that. Very low float. When they will start falling, आपको exit करने की जगह नहीं मिलेगी. So, but till the rally is continuing, enjoy करिए. Nat gas का skew बहुत strong है. नेचुरल गैस प्रॉब्लम नेचुरल गैस के साथ ये है कि वो मंथ जो करंट मंथ वाला है वो मूव नहीं करता, और अगले मंथ की रोल ओवर बहुत महंगी है. स्क्यू उस तरफ की है. अब विंटर सीजन आ रहा है, और they will require natural gas, Europe and US and Canada. मेन नेचुरल गैस का सोर्स कतर एंड रशिया है. अगर रशिया ने बाय एनी चांस, अगर यूक्रेन को इन्होंने बंद ना किया एड देने, और रशिया आज कह देता कि मैं नेचुरल गैस नहीं बेचूंगा, लेट्स अज्यूम प्राइस विल रैली बैक टू 4-4.5. अगर वो नहीं होता तो जेड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी $3.5 पे ट्रेड कर रहा है, गेस दैट इज अ दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट. सो देयर इज नथिंग टू मेक. पैसा बनाने वाली कोई चीज नहीं है नेचुरल गैस. लगती बहुत अच्छी है, बट
skew already इतनी high है, that's why I say don't see the VIX, see the skew. Skew is इतनी high कि rollover की cost बहुत ज़्यादा है, अगर कोई न्यूज़ ना आई तो वो आप rollover में पैसे गवाएंगे. This is my personal opinion. इसलिए मैं natural gas को high skew में trade नहीं करता. अभी मेरी natural gas में जो position है वो मैंने almost 3 पे exit कर दी थी. छोटे छोटे ट्रेड्स लेता हूँ, पर मेरे को कोई होल्ड करने का उसका कोई रीजन नजर नहीं आता, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में भी जो प्रीमियम मुझे मिलता है उससे ज्यादा की स्क्यू है, which is I have other commodities which I can trade. मारुति बजाज फाइनेंस दोनों का व्यू मैं दे चुका हूँ. मारुति looks really nice, can go to pretty high levels. It is our outlook portfolio stock as well. बजाज फाइनेंस चल पड़ा है, अब डेंजरस टेरिटरी की तरफ जा रहा है. 7800 7700 डेंजरस टेरिटरी है, 8200 on the upside, but मैं इस रेट पे बजाज फाइनेंस को बाय नहीं करूंगा. मारुति हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है, ऑल्दो बजाज फाइनेंस अभी भी ऊपर जा सकता है बिकॉज ये उसका फेस्टिव सीजन टाइम है, बट मैं पर्सनली नहीं बाय करूंगा बजाज फाइनेंस को, क्योंकि नीचे लेवल्स पे मैं बजाज फाइनेंस को बाय करूंगा 6000 5800 के लेवल्स पे. मारुति की इस दिन आपको 9000 9200 300 मिल जाए तो आप बाय करें, मैं पर्सनली लॉन्ग. Pidilite will preempt with Pidilite moves with crude oil prices, so आप क्रूड को ट्रैक करें, जिस टाइम क्रूड का टॉप लगेगा उस टाइम पे Pidilite का लो लग सकता है. कोरिलेशन अच्छा है इनके साथ उसका, बिकॉज उसका मेन आई थिंक एडहेसिव के अंदर एक बड़ा मेजर रोल है क्रूड ऑयल का. तो आप क्रूड ऑयल जैसे जैसे महंगा होता जाएगा Pidilite वैसे वैसे नीचे जाएगा. वेरी गुड कंपनी Pidilite, मोनोपोली टाइप कंपनीज है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक बियॉन्ड पॉइंट आप मार्केट के अंदर प्राइस हाइक्स नहीं कर सकते, बिकॉज फिर Pidilite से लोग शिफ्ट होकर दूसरे एडहेसिव्स पे चले जाते हैं, और भी हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल. फर्स्ट प्रेफरेंस आई थिंक फेविकोल ही है ना, फेविकोल पे ही होती है, बट अगेन इफ इट गोज रियली हाई तो आप बियॉन्ड अ पॉइंट कंज्यूमर को वो पास ऑन नहीं कर सकते. ये चिप्स तो है नहीं कि आपने 100 ग्राम्स के पैकेट को 80 ग्राम करके प्राइस सेम रख ली. अगर 1 किलो का है तो आपको 1 किलो ही रखना पड़ेगा ना. सो हर इंडस्ट्री का डिफरेंट वे ऑफ थिंग्स है. I was never good in studies. Anil का question है, how good were you with maths specifically, and that deals with the options modeling. I was never great with mathematics, but मेरी पिकअप स्ट्रॉन्ग है, एंड आई जो मुझे करना होता है वो मैं कर लेता हूँ, जैसे मर्जी करूँ. अगर मेरे दिमाग में कोई चीज फंस गई कि मुझे करनी है तो मैं कर लेता हूँ. नाउ आई एम प्रीटी गुड विद मैथ्स. अगर 15 years बैक मैं बात करूँ, आई वाज नॉट ग्रेट विद मैथमेटिक्स, बट अब मैं बहुत एफिशिएंट हूँ मैथ्स में. मॉडलिंग में खुद करता हूँ, हर चीज मैं खुद करता हूँ. कोडिंग में थोड़ा इतना एफिशिएंट नहीं हूँ, पर वो भी मैं उस पर आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन कोडिंग एज वेल. आई अभी फ्री टाइम में मैं कोडिंग ही सीखता हूँ, ऑल्दो आई हैव लॉट ऑफ मेरी सारी टीम्स कोडिंग वाली हैं. मेरे 2 टीम्स के अंदर 2 लड़कियां हैं, जो एक ईरान से है, एक यूक्रेन से ही है, जो PhD इन मैथमेटिक्स है. दे हेल्प मी जहाँ मैं स्टक हो जाता हूँ, बट आई ट्राई टू लर्न रादर देन माइंडसेट की. जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो बंदा नहीं हूँ जो किसी पे छोड़ता हूँ चीजें, मैं खुद करने की कोशिश करता हूँ. हाँ, जहाँ से मुझे हेल्प मिले मैं वो ले लेता हूँ. टेक्निकल एनालिसिस मैंने ऐसे ही सीखा था. मैं तब ना कोई बुक्स होती थी ज्यादा, ना इंटरनेट होता था ज्यादा बियॉन्ड अ पॉइंट, ना वेबसाइट्स होती थी, ना यूट्यूब होता था. मैं इन्वेस्टोपीडिया से पढ़ पढ़ के, हाथ से चार्ट्स ड्रॉ करके पेपर के ऊपर, रोज की क्लोजिंग प्राइसेस, आई चार्ट्स आया बाद में, उससे पहले भी मैं हाथ से चार्ट्स ड्रॉ करता था इन्फॉर्मेशन लेके, और मजा आता था उसमें. तो वहीं से सीखा हूँ, हर चीज खुद से सीखा हूँ. मेरा कोई मेंटर नहीं है. मैंने हेल्प ली है बहुत लोगों से, कईयों ने की, कईयों ने नहीं की, कईयों ने समझाया, कईयों ने नहीं समझाया, बट माय टीचर हैज बीन इंटरनेट ओनली. आई हैव लर्न फ्रॉम देयर. टाइम लगता है, पर आप सीख जाते हो. तभी मैं कहता हूँ व्हेन समवन आस्क्स मी अबाउट, मैं आई एम अगेन, जब मैं माइंडसेट मेंटरशिप की बात करता हूँ, आपको मेरे से मेंटरशिप लेने की कोई जरूरत नहीं है. सीधी बात कर रहा हूँ. अगर आप में विल है ना तो आप खुद सीख जाएंगे. मेंटरशिप का सिर्फ फायदा ये है कि जिस चीज में आपको 3 से 5 साल लग जाएंगे, वो आप 5 महीने में कर सकते हो. तो वैल्यू जो मेंटरशिप की है वो टाइम की है, कंटेंट की नहीं है. कंटेंट आपको सारा इंटरनेट से मिल जाएगा, बुक्स से मिल जाएगा,
मैं कोई अब मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैंने कोई ब्रेक थ्रू ऐसी अचीव कर ली है, बट मैंने इतना मेहनत किया उस पर और अपना एक्सपीरियंस जरूर डाला उसके अंदर। तो जो आउटलुक मेंटरशिप है, जो चीज द थिंग दैट विल टेक यू 4 to 5 years, यू विल गेट इट इन 5 to 6 months। मेहनत आपको तब भी करनी पड़ेगी मेंटरशिप में भी, अदरवाइज भी। दिस इज, यू आर पेइंग फॉर योर टाइम, यू आर नॉट पेइंग फॉर द कंटेंट। You know, if you have a lot of time and you want to spend 5 years, don't pay anything. If you have time, if you don't have time and you want to get better in things and want to become professional faster, then you can pay. So if you value your time, you pay for the mentorship. मेरी नहीं, सबके लिए। हमें किसी की भी, आप कुछ भी सीखते हैं, आप खुद भी सीख सकते हैं। मैं जब कॉलेज में था, इकोनॉमिक्स वाज माय वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, पर आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी। वहां पे एक ही लाइब्रेरी होती थी, उसके अंदर बुक्स ढूंढने में इट वाज इन इटसेल्फ अ टास्क। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता था, आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसे हुआ होगा कॉलेजेस में, जब आपको क्वेश्चन पूछना है तो यू गो टू either your professor the next day if he or she is available, or you go to the library। हमारे केस के अंदर लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी, जो बुक्स अवेलेबल है वो बुक्स हमारे पास भी होती थी करिकुलम वाली, तो वी हैड टू वेट समटाइम्स डेज, समटाइम्स वीक्स टू आस्क द क्वेश्चन। आज फायदा क्या है, आज आपके पास इंटरनेट है, हम सबके पास, तो वी कैन आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम गूगल, अलेक्सा, सिरी, एंड द आंसर विल बी इन अ मिनट। बट हुआ क्या, हमको उसकी वैल्यू खत्म हो गई। मेरे को उस क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू थी, बिकॉज मुझे आंसर नहीं मिलता था, और वो मेरे माइंड में जब प्रोफेसर ने डालना, वो अभी तक भी मेरे माइंड में है। वो मेरे प्रोफेसर की बातों, वो शी पास्ड अवे, मे शी रेस्ट इन पीस, उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है कभी कभी, जब मैं उस टॉपिक पे फिर से कभी किसी से बात कर रहा हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, आई कैन हियर हर स्पीक। शी इज सो मच, शी हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच इन माय लाइफ। सारे प्रोफेसर नहीं होते ऐसे, कई होते हैं। सुषमा, प्रोफेसर सुषमा गोयल उनका नाम था। तो शी हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच। माय सिस्टर, वो भी पढ़ी उनसे, शी इज, माय सिस्टर इज प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, वो उनकी स्टूडेंट है, मैं टीचिंग में नहीं गया। तो माय सिस्टर इज अ पीएचडी एज वेल। So it's that only. So it's mentorship is all about finding the right teacher who can help you answer the questions. नहीं तो world is full of knowledge। आपने जो सीखना, आप YouTube से आप सीख सकते हैं, आपके में विल होनी चाहिए। हाँ, टाइम की वैल्यू है, जो अगर मैं आपको अपने 4 घंटे दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आज तो चलो वीकेंड है तो आई डोंट हैव मच टू डू, तो मैं, पर जरूरी नहीं मैं कल ये सेशन करूंगा, शायद मैं आज ये लास्ट सेशन हो साल का, मेरे पास शायद टाइम ना हो। मेरे टाइम की वैल्यू क्या है कि आई मीन आई एम नॉट आस्किंग एनी मनी फॉर दिस, आई एम डूइंग इट फॉर फ्री, टेकिंग योर क्वेश्चंस, एवरीवन्स क्वेश्चंस। तो जो मेंटर के टाइम की वैल्यू होती है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट आपसे ले रहा हूं, अगर मैं आपको 4 घंटे दे रहा हूं, मैं उस 4 घंटे में कितने पैसे वैसे ही कमा सकता हूँ ट्रेडिंग में, बिना अपनी ज्यादा दिमाग लड़ाए आपसे, आपके क्वेश्चन या आपका हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। अगेन, यू डोंट हैव टू, if you want to learn, you can learn anything in life। HDFC closed on 21 EMA monthly for the first time after COVID ratio was sign of weakness। HDFC is a dead stock। HDFC छोड़ दें HDFC को, there are so many other opportunities। क्या किया HDFC ने पिछले 1 साल में, मार्केट कहाँ से कहाँ क्या किया, ये कोई चार्ट है? मैं थोड़ा सा, आई डोंट लाइक HDFC। ठीक, यहाँ से उसने वेल्थ क्रिएट कर दी है, वो आपको अब क्या लेंगे उससे? 2010 से स्टॉक जाई जा रहा है ऊपर, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, अब आप क्या चाहते हैं उससे? अभी भी आप, अब स्टॉक मैच्योर हो जाते हैं, ट्रेंड मैच्योर हो जाता है। इट्स, आई डोंट लाइक HDFC। ये शायद गिरे ना तो अगले 3-4 साल यहीं रहेगा, कुछ नहीं है इसमें। 50-100 रुपए ऊपर, 200 रुपए नीचे, इसमें कुछ नहीं है, नथिंग लेफ्ट इन दिस। स्टॉप, आई मीन यू आर वेस्टिंग योर, बिकॉज ओवर ओनरशिप है, सारे फंड्स के पास है, सबके पास है ये। तो उसमें क्या है, 200 पॉइंट नीचे आएगा फंड बाइंग में आ जाए, 200 कह रहा हूँ, 50 पॉइंट नीचे आएगा फंड्स बाय करना शुरू कर देंगे, 50 पॉइंट ऊपर जाएगा 100 फंड सेल करना शुरू कर देंगे, फिर ले लेंगे, फिर बाय। देयर इज नथिंग इन इट, आई डोंट लाइक इट। बाकी आपके पर्सनल ओपिनियन है, मुझे इसका भी स्टॉक अच्छा नहीं लगता। और वो 21 के नीचे जाए ऊपर जाए, आप बेस्ट स्टॉक है आपका ऑप्शन सेलिंग के लिए।
अगर आपको ऑप्शन सेलिंग आती है ना, तो मंथली बार के ऊपर बेस्ट स्टॉक है ऑप्शन सेलिंग के लिए, जितना मर्जी पैसा इससे कमा ले, पर स्टॉक बाय एंड होल्ड में कुछ नहीं है। LMW for absolutely, LMW is a great company. LMW is an LMW में 2003-4 से ट्रेड करता हूँ। इट्स ब्यूटीफुल कंपनी, पर इट हैज रन अप। यहाँ पे ये कोविड है ना, कोविड वाला टाइम है, हाँ, यहाँ पे मैंने किसी को बाय करवाया था, 1800-1900 रुपये था, सबको मैंने कहा था अपने ग्रुप में, ऑप्शन गार्ड में पढ़ा रहा था, एक हाँ 2000 इतना ही था, 2000 राउंड दीज लेवल्स। मैंने कहा था कुछ और लो ना लो, LMW ले लो, ऐसे प्राइसेस मैंने कभी नहीं देखे। बट LMW अब उसके बाद कहाँ गया आपके सामने ही है। अगेन बहुत रन अप कर चुके हैं, हाँ, सारे स्टॉक्स बहुत रन अप कर चुके हैं। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सिप कर सकते हैं, हर 2-2 हज़ार, शायद ही यहाँ भी वापस आ जाए, 8,000 पे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट ऐसे ही चलती है। बट क्या आप यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएंगे LMW का? मैं तो एडवाइस नहीं करूँगा, सिप कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है, कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 साल बाद यहीं पे रह सकती है ये। तो जब हम बात करते हैं ना 4-5 साल कहाँ से? यहाँ से, जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ से कि यहाँ से? हम आप जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, बड़े जेनरिक पूछते हैं, नो, किसी को मैं कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहा, आप अपना माइंड को थोड़ा सोच के देखें, 4-5 साल कहाँ से? यहाँ से, 2000 से, कि 4-5 साल यहाँ से, 15,000 से, 17,000 हो जाएगा 4-5 साल में। आपने क्या अचीव किया? 2000। यहाँ पे आपने क्या अचीव किया? 5x। ऐसे सोचे। What did I see there? ओ, ये एक चार्ट था, मेरे से गुम हो गया, मैंने पोस्ट किया था सबको, जो मैंने देखा था वो मैंने बासफ में भी देखा था, बासफ भी दिखा देता हूँ, बस चार्ट मेरा गुम हो गया। बासफ भी हमने अराउंड यहीं कहीं लिया था, और जो जिसने जो मेरे से ऑप्शन ऑप्शन गॉड में जो थे, मैं उस दिन पढ़ा रहा था, डजन बासफ ये सब, बॉट इट, आई मीन आई आस्क्ड एवरीवन टू बाय इट, मैं तो खुद लेते ही रहता हूँ। तो ऑल ऑफ दिस बासफ भी, अब अगेन अगर आप मेरे से पूछते बासफ गुड कंपनी में 4 to 5 years यहाँ पे 3500 पे, कंपनी तो अभी भी गुड ही है, पर कहाँ आ गया वो? अब आप मुझे यहाँ से 4 and 5 years, मैं कहूँगा हाँ अच्छी है। अगर आप मुझे पूछे यहाँ पे 4 and 5 years क्या हुआ उसके बाद, मुझे नहीं पता, ये नहीं मैं कह रहा कि मेरे को सब पता है कि यहाँ से नीचे जाएगा, आई एम जस्ट सेइंग द क्वेश्चन इज व्हेन। अगर आप अब मिड कैप इंडेक्स यहाँ से पूछे 4 to 5 years, आपको शायद, इफ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर आप इसको रियलाइज करें ना, तो अब कहाँ पे 4-5 साल, यहाँ पे कि यहाँ पे? ये पॉइंट है, माइंडसेट का ही है। बट आपको ये क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि अब इससे ज्यादा कहाँ, यहाँ, फिर क्या हो गया 2 बार और यहाँ, पर आप क्या कमा रहे हैं? और अगर बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए और ये यहाँ वापस आ जाए, जो ये बहुत आसानी से आ सकता है, ये जो स्टॉक्स आपको आज मिल नहीं ना रहे अपर सर्किट पे, ये आपको मिनते करेंगे ले लो डाउन सर्किट में, तब कोई बायर नहीं होता। सो अगेन इट्स दैट्स व्हाई ये जो 90 डिग्री मूव्स होती है ना, इससे डरा करो, और इस सेशन से और कुछ ना लेके जाओ, हमेशा ये लेके जाना कि ये जो 90 डिग्री मूव्स है ना, ये सस्टेन नहीं करती किसी भी स्टॉक पे, कभी नहीं की, कभी नहीं करेंगी। इसका मतलब ये नहीं कोलैप्स होगा, इसके बाद आती है कंसोलिडेशन। यहाँ, और क्योंकि आप इतने हाई पे होते हो, आपने यहाँ लिया होता है, तो आपको, आप एग्जिट कर जाते हो, आप कंसोलिडेशन झेल नहीं पाओगे। यहाँ से यहाँ आया ना, आपने आधे से ज्यादा लोगों ने पोर्टफोलियो बेच देना अपना, तो आपको ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर अभी नहीं नजर आ रहा, बिकॉज देयर इज नो कैंडल। जब आएगा तो रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा अंडरस्टैंड, दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट डू यू कॉल रिस्क मैनेजमेंट? मैं आपको स्पेसिफिक इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसको मॉडल भी कर सकते हैं, इसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं, इससे पैसा भी कमा सकते हैं, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। अभी हम आपको, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। Any more questions? Anyone will have another 10 minutes and then we'll call it off. Why HDFC merger? Why तो why is ITC splitting into two? ये तो ITC बता सकता है कि क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, उनको कुछ ख्याल आया होगा, मर्जर में भी उनको कुछ ख्याल आया होगा, मुझे नहीं पता है, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे सिर्फ प्राइस में इंटरेस्ट है, ये कहाँ है और मैं कहाँ बेचूंगा, ये मैंने यहाँ बेचा है, मैं कहाँ खरीदूंगा। ये जितना आप अपने माइंड को इन चीजों से क्लटर करेंगे ना, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, छोड़ दें, लीव इट, लेट इट गो, आपकी लाइफ इजी रहेगी, थॉट प्रोसेस कूल रहेगा। या यू कैन ओपन योर माइक।
You can open your mic and you can discuss. You can talk, no problem. हैप्पीएस्ट माइंड मेरा अच्छा स्टॉक है, 300 से मैं एंटर हो गया हूँ उसके अंदर। यहाँ पे, यहाँ से यही मेरा बाय लेवल है, यहाँ पे मैंने बेचा नहीं। बुलिश हूँ कंपनी पे, अभी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रही, लॉन्ग टर्म में देखेंगे, पर आई एम नॉट विलिंग टू सेल इट। अगर ये वापस 300 आ गया मैं और बाय करूंगा, आना नहीं चाहिए बट आ भी गया तो फिर से बाय करूंगा। मेरा कोई इस पे अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म, यही कह सकता हूँ। मैं रोज डेली इसके प्राइसेस नहीं देखता, और कंपनी अच्छी है। हाँ बहुत नीचे आएगा तो फिर और बाय कर लेंगे। If anyone wants to ask a question with the mic on, then also it's fine. JMM Fodler की हमने I think लास्ट सेशन में बात की थी, लास्ट सेशन, 2 सेशंस पहले की बात की थी अराउंड कहीं यहाँ पे। अच्छा मूव दे गया, बुलिश हूँ इस कंपनी में, अच्छी कंपनी है। कोई एडवाइस नहीं, जो भी मैं स्टॉक कह रहा हूँ मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मेरी अपनी होल्डिंग है। मैं इनका रोज रोज प्राइस नहीं देखता, लोअर एंड पे जरूर खरीदूंगा, ऊपर जा रही है तो जाने दूंगा। That's it. I'm not advising anything. Advices are only in portfolio and premium. Good afternoon, sir. So I was Good asking about IEX. See, these are the afternoon. Yes. strong stocks. No. I'm not for short term. These are the strong stocks. Once time it was very strong. Price moved Yes. 90-degree and now it's in waiting phase. Yeah. So why this happens so long? The stock is so strong. Fundamentals are so strong, but the price is not reacting. But everything is running nowadays. Nifty running, automotive stocks running, everything is on the way for 90-degree. But the strong like stocks like this, these are the strongs, but they are not moving. So what could be the potential reason? Is they are waiting for the final move to make it happen, or something is waiting for us that we should get out, then it will move. देखो रिस्क रिवॉर्ड के बेस के ऊपर तो स्टॉक को ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट दे आर नॉट मूविंग Ah, एंड दैट्स आल्सो द रियलिटी, राइट। पर आपकी मैं few बात stocks सिर्फ more that मैं Rain ट्रैक कर, Industries is also there. मैं आई डोंट ट्रैक इट। आईएक्स को भी कर देख लेते हैं, मैंने देखा नहीं, बहुत देर हो गई। जब मार्केट नहीं चल रही थी तब ये चल रहे थे, राइट, Yes. आई थिंक, राइट। सो Yes. दिस इज दिस इज काइंड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने ये किसी सेशन में इसके बनाई थी नेचुरल गैस पे, जब किसी ने मुझे कहा कि सर ये और नीचे कितना जाएगा, मैं कहा ये आप ट्रैक करते हो, अब जो मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। ये थोड़ा सा इट माइट चेंज योर माइंड हाउ लुक एट थिंग्स। हमें लगता है, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, हमें लगता है कि स्टॉक नीचे का लो है 42 जब ये चला था, ऊपर का हाई है 312। Hmm. पर अगर आप इन दोनों को एक्सट्रीम्स मान लें और इनको निगेट कर दें, दोनों को 2 मिनट के लिए Hmm. छोड़ देंगे, ये 42 पे था, 2 मिनट के लिए छोड़ दे, कभी 300 पे था, ठीक है, तो क्या रह जाता है? क्या रहता है? अभी बताता हूँ क्या रह जाता है। तो ये रह जाता है, ठीक है, ये एरिया रह जाता है। तो ये कंसोलिडेशन में है, सिंपल। तो ये कोई लोअर एंड तो नहीं है उसका, लोअर एंड तो ये था, इसको छोड़ दें 2 मिनट के लिए। वो अपने ये ऊपर क्यों गया था, इतना क्या यूफोरिया था इसमें जो ऊपर चला गया? अगर ये ऑल्दो यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है, आई थिंक जहाँ से लिस्ट हुआ है ये वो एरिया है, तो यहाँ पे गया क्यों था? व्हाट वाज द रीजन? तो हम हमेशा व्हेन वी कंपेयर वी लुक एट द हायर की, यहाँ चला गया, लंबर इतनी ऊंची क्यों गई, ऑरेंज जूस इतना क्यों जा रहा है, ठीक है। these are good stocks but they are very much dependent upon the policies of the government. Market doesn't like anything which is very much dependent upon the policies of government, which can change a lot of things. IRCTC is a great company, Hmm. ठीक है, मोनोपोली बिजनेस, ये क्यों लैग कर रही है? व्हाई इज इट नॉट? जहां पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम है और ज्यादा, और बिजनेस मॉडल में कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है कि गवर्नमेंट निकाल ले, ठीक है। एचएएल में प्रॉफिट बहुत है, एचएएल का एक ग्रोथ स्टोरी है एचएएल, ठीक है, पर इसमें तो कोई इट्स नॉट मेकिंग ऐसी मनी की मतलब हम कह सकें कि यार इसकी तो ग्रोथ, तो जिसमें
ग्रोथ है तो उसको मार्केट लाइक नहीं करता। जब ये ऊपर गया था तो एक स्टोरी के पे गया था, यहाँ पे ऐसे होगा वहां पे ऐसे होगा, वो मटेरियलाइज नहीं हुई स्टोरी। जो मटेरियलाइज नहीं हुई मार्केट इट्स बेस्ड, मैं आईएक्स को होल्ड करता हूँ। एंड आई थिंक सो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे है और ये इसका टॉप है तो ये मीन हुआ इसका, तो इट कैन रैली टुवर्ड्स 150 160, जो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, इट कैन गो टू 160, इट कैन गो टू 160। पर आप देखें जैसे ही न्यूज आती है वो कैसे फॉल करता है, न्यूज आती है कैसे फॉल करता है, राइजेस स्लो है। तो मार्केट इज नॉट वेरी, अगर दैट मींस फंड्स आर नॉट बाइंग इट, लार्ज कैप अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज नहीं कर रहे बिकॉज उनको श्योरिटी नहीं है कि मार्केट आगे क्या करेगी, कल मार्केट इनकी मोनोपोली तोड़ देती है। तो ये नीचे ये इसलिए आई थिंक आईएक्स, पर जो एज कम्पेयर टू जो पीएफसी है या आरएफसी है, उनको उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। गवर्नमेंट की जो बिजली की पॉलिसी आने वाली या उस हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट्स है पावर में, उसके हिसाब से पीएफसी एक बहुत बड़ा लेंडर है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत है, तो पीएफसी ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है। कल गवर्नमेंट कहती है कि हम जी पावर पे अब इतनी, हम थोड़ा सा अब, क्योंकि जितने नई ईवी टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हाइड्रोजन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसकी फाइनेंसिंग तो इसने ही करनी है ना पीएफसी ने, गवर्नमेंट का उस पर इंटरेस्ट है। अब गवर्नमेंट कहती है हमें नेट एक्सपोर्टर बनना है इसकी, व्हाट डू यू कॉल ऑल योर ब्रह्मोस एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऊपर जा रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट चाहती है यहाँ पे कि हम पैसा भी लगाएं, गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपोर्ट भी करें और उसमें मार्जिन भी हैं और ऐसा प्ले भी नहीं है। तो वहां पे तो आप आईआरसीटीसी देखें, जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसमें से पैसा निकालें, ओएनजीसी क्यों नहीं चलता, एचपीसीएल क्यों नहीं चलता, बीपीसीएल क्यों नहीं चलता, अगेन सेम थिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव एन इम्पैक्ट। सो हम ओवरऑल हम देखते हैं अब जैसे केमिकल सेक्टर है, जब कुछ नहीं चल रहा था केमिकल सेक्टर चल रहा है, अब केमिकल सेक्टर इतने ऑलमोस्ट ईयर एंड हाफ दे आर इन रेंज। अब जब चला था, जब मार्केट नॉर्मल थी, तब ये चलते जा रहे थे ऊपर से ऊपर, एसआरएफ, एल्केल माइन, बालाजी माइंस, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन। नवीन का कल जरा सी बुरी खबर आई, जो कोई बुरी नहीं है, ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, वो स्टॉक को क्या किया उन्होंने, वो कहाँ 13% से शुरू breakdown. हुआ, या फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट, it started from 500 already up there. So again, at these points, now the risk reward is comparatively better. But what do you expect the risk reward at these levels, 5,000? What were you expecting the risk reward of IEX at that level, Laurus Labs at that level? So yeah, you have to is company by company. You can't say that. I'm surprised by IEX to be honest. अब यहाँ पे Laurus Labs चला गया, मेरे पास ऑलमोस्ट आईपीओ का ही है, मुझे पता ही नहीं क्या प्राइस का है, मेरे को जब से आईपीओ था तब का है, तो अब कहाँ चला गया 700, अब क्या कर गया, तभी मैं कहता हूँ मिड कैप इंडेक्सेस जैसे ये चल रहे हैं, दे कैन करेक्ट टू दीज लेवल्स प्रीटी इजीली विदाउट इवन अ फ्राउन, बट पीपल विल लूज अ लॉट ऑफ मनी। 500 पॉइंट मार्केट गिरती है, लोग ऐसे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, वी आर स्टिल नियर ऑल टाइम हाई। Yes. So yeah. But And yesterday, sir, there was some drastic news in what Naveen Fluorine, and we are good for it. But why did you choose yesterday only, Naveen Fluorine? You could have waited for one more day to settle down the dust, or it because was the for the. volatility was, option volatility was in my favor, I was get uh, look, whenever this kind of things happen without any major, कुछ नहीं हुआ, एक दो बंदे छोड़ के चले गए, that's fine, happens, things happen, but volatility is in my favor, stock is great company, everything is right, uh, so I bought it and You must have position seen sizing सही something. करो, yeah, that I can't show you here, but I mean but yeah, then it stopped falling when we bought. तभी मैंने, I didn't know the news, I just saw the chart, I saw the price, so I asked someone what is the news, and someone pointed out that this happened, and then that's it. And I thought इतनी कोई बुरी बात तो है नहीं, price के where I want, it can fall another 100 points, 150, I'll buy more there, but exit भी कर जाऊंगा जल्दी, trend बदल गया है, but overall good stock, कोई ऐसी टेंशन नहीं है इसकी।
Anything else anyone wants to ask, or should we call it a day? It's Sunday. You guys might have other plans as well apart from this market related session. So are you going to upload the next part of the Of previous of that webinar you were doing in November December webinar series 2 already uploaded last week? दो मैंने अपलोड 2 या 3 कर दिए थे, वही दो उतने ही करने मैंने रिकॉर्ड किए थे, उतने एक्चुअली इट वाज नॉट फॉर रिकॉर्डिंग, वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया था किसी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड अपने सेशंस तब करता हूँ जब मुझे कोई कह देना कि सर आई कांट ज्वाइन, तो कैन यू रिकॉर्ड इट फॉर मी, ओनली देन, अदरवाइज कोई रिकॉर्डिंग का, बिकॉज मैं रिकॉर्ड वो करता हूँ बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग, ये दिस इज जस्ट अ चिट चैट, इफ इट एड्स वैल्यू टू समवन आई एम फाइन विद दैट, आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग, टीचिंग वाले there टाइम, was some there was some topic you were touching about mindset, and the video got ended. There was something influence how the TV is influencing our daily life and things. So to continue from there, if the recording is there, if possible, put it no, there. It I was don't, interesting. so my mindset program is fully like that only, in which I have taken things from so many places and added so many ideas, thought processes into mind. This is just, it was very simple. That was not the real mentorship. By real mentorship, I mean that was not the Option God Mindset program. Option God Mindset program is designed for हर एक चीज एक स्ट्रक्चर के बेस पे डिजाइंड है, where we discuss bias, discipline, anti-fragility, chaos, all that, how not chaos in market but chaos how market affects your mind. So there are a lot of topics in there. It's, as I said, 25-30 hours of this, but yeah, some, if that was the only recording, but maybe we'll touch on that once again some other session. So I guess that's it. No one has any more questions. Should we call it a day? Yeah, this is, look, you can, जो आप जिसको, I can, only the person who has his mind in control can help you out. I'm not saying I'm the only one. So anyone, I have control on my mind, which has taken a long time. It has taken a long time for me to reach there. I still, we are never 100%. I am still learning newer things, newer ideas. कई ideas मेरे अपने students से बात करते करते आ जाते हैं. Then I'm explaining something. Then while talking to them, I get some sort of an idea. We share, bring. I'm working on noise right now. How noise impact है तो bias का ही एक part है, but another बिल्कुल start नया topic है noise. I mean noise outside, inside your mind, जो आपके mind के अंदर की noise होती है, उस पे I'm working on that, and there are a lot of other things as well. I keep on doing different subjects. Uh, so it's a process. It's a continuous process, but I'm happy that it adds value. I have Mahendra Kumar, 2 premium channels only. One is the Outlook Premium, and another is the Outlook Portfolio. In Outlook Premium, I don't give advice on anything. जो भी मैं ट्रेड करता हूँ मैं वो ट्रेड आपको शेयर कर देता हूँ. एंट्रीज, एग्जिट, hedges, everything. Outlook Portfolio, I have opened a portfolio with 1 CR of my own money, and whatever I take I put. आपके पास 1 लाख है, आप 1 लाख इन्वेस्ट करें, आपके पास 1 करोड़ है, आप 1 करोड़ करें. मेरी तरफ से कोई कैपिटल की स्ट्रक्चर नहीं है. आउटलुक प्रीमियम में बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि कैपिटल कितना चाहिए. 10 लाख अगर आपका कैपिटल है तो आप एफएनओ ट्रेड कर सकते हैं. अगर आपका 10 लाख से कम, 5 लाख से कम कैपिटल है, तो आप जो ट्रेड में लॉन्ग कहूँ, आप उसका स्टॉक बाय कर सकते हैं. ठीक है, स्टॉक बाय कर सकते हैं, बस उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि आप हेजेस नहीं कर सकते, या आप ऑप्शन ट्रेड करें, या आप ऑप्शन स्टॉक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करें, सॉरी स्टॉक फ्यूचर्स में और इंडेक्स फ्यूचर्स में ऑप्शन ट्रेड कर लें. ये चॉइस है. कैपिटल ज्यादा होगी तो आपको इजी होगा ट्रेड करने के लिए. जब मैं कहूँ रिस्की ट्रेड है तो आप वो ट्रेड मत करें. दैट मीन्स इट हैज मोर वॉलिटिलिटी. जैसे पॉलीकैब है, पॉलीकैब इज ऑलवेज रिस्की, मार्जिन ज्यादा है, वैसे ट्रेड्स आप मत करें. सिंपल एंट्री ऑन एग्जिट निफ्टी की. बट मेन, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आउटलुक में जो वही ट्रेड डालता हूँ जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ. एक भी कोई ऐसा ट्रेड नहीं है, ना पोर्टफोलियो में ना आउटलुक में,
जो मैं खुद ट्रेड नहीं करता, मैं पोजीशन सेम पोजीशन में रेप्लिकेट करता हूँ, इसलिए आउटलुक चलाना मेरे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैंने खुद एग्जीक्यूट किया या मैंने अपनी टीम को कहा ये एग्जीक्यूट कर दो, उन्होंने या मैंने ये मैसेज आपको आउटलुक प्रीमियम पे डाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, उसमें कोई उसमें ये है सबसे क्यों आउटलुक प्रीमियम, दिस इज आई थिंक द सेकंड थर्ड ईयर, आई गेस थर्ड ईयर, आई डोंट रिमेंबर, सेकंड या थर्ड ईयर है आउटलुक प्रीमियम का। व्हाई पीपल स्टिक विद आउटलुक प्रीमियम? सारे नहीं स्टिक करते, कई लोग नहीं भी कहते, सेकंड ईयर है ओके, तो नहीं, कई लोग फिर से वापस आते हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने रिन्यू नहीं किया था वापस आ गए, उनकी अपनी रीजन हो सकते हैं। आउटलुक प्रीमियम है क्योंकि कई लोग अपनी ट्रेडिंग भी करते हैं, मेरे भी ट्रेड भी करते हैं, किसी में लॉस हो जाता है, किसी में प्रॉफिट होता है, नेट नेट वो नहीं संभाल पाते, बट मेरा इसमें स्किन इन द गेम है। स्किन इन द गेम का मतलब है मैं खुद ट्रेड करता हूँ, तो अगर आपको लॉस हुआ है तो मुझे भी हुआ है, मेरा आपसे ज्यादा होगा कि मेरी पोजीशन आपसे बड़ी है, अगर शायद आपका आपका ज्यादा हो, आप किसी की पोजीशन मेरे से बड़ी हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैं पूछता हूँ आपकी कैपिटल क्या है ना, मैं आपका मुझे नहीं पता, आप जितना मर्जी ट्रेड करें, आप 1 लॉट करें 100 लॉट करें, इट्स योर चॉइस, आई डोंट नो, जितना कमाएंगे जितना डालेंगे उतना ही निकालेंगे, लॉस भी प्रॉफिट भी, सो दैट्स योर चॉइस। हम अजूम करके चलते हैं कि हर एक बंदा 1 1 लॉट ट्रेड कर रहा है, आप 2 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो पर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, आपको लॉस हुआ है तो मुझे भी लॉस हुआ है, तो इसलिए आउटलुक जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा इजी है, पोर्टफोलियो में भी ऐसा ही है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एनालिसिस कर करके चीजें निकालूं, जितना मेरे पास टाइम होता है वो मैं, अगर मैं 1 हफ्ता नहीं ट्रेड करूंगा तो मैं कॉल नहीं दूंगा, सिंपल एज दैट। पिछले पिछले साल हुआ था, मैंने 1 हफ्ता नहीं ट्रेड किया तो मैं वोंट गिव अ कॉल, दैट्स इट, इट्स लाइक दैट। स्ट्राइक रेट तो लोग आपको बताएंगे, अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, 80-90%, 80-90%, अभी तो 85-90% तक है। कभी कभी आपको कोई स्टॉक्स होल्ड करने पड़ जाते हैं, उसमें हमारे को ऑप्शंस बेच के कंटिन्यूस करते हैं 2-3 महीने के लिए, कोई फ्यूचर रोल ओवर भी करना पड़ता है, सब कुछ है, तो इट्स नॉट इंट्राडे, हम ट्रेड नहीं करते, अगर इंट्राडे प्रॉफिट मिल जाए ले सकते हैं, बट थॉट प्रोसेस नहीं होता इंट्राडे, आज तक तो, अभी तक तो नहीं हुआ। एक मैंने उस दिन वैसे ही ट्रेड लिया था, एक कॉल ली थी लास्ट 0 डे टू एक्सपायरी, वो भी कोई चीज चेक कर रहा था 12 रुपए पे, बट यूजुअली मैं करता नहीं हूँ, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करता, जो लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नहीं मैं करता, तो जो लोग वो करते हैं वो आउटलुक प्रीमियम ना ज्वाइन करें, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एनी इंट्राडे ट्रेड्स। Anything else anyone wants to ask? I think we are out of time now. You guys can have a break as well. As I said, it's a chit chat session. This is not a guarantee कि अगली बार भी हो. Uh, uh, that's it. I mean, it might be the last session of the year. Maybe हम अगले हफ्ते फिर कर लें. Festive season is coming. I'll be a little busy with my own life as well. अभी 1-2 हफ्ते में थोड़ा free था, तो we did the sessions. But we'll keep the community alive. We'll do some sessions in between. So yeah, I hope it added some value. And if any questions, you can always ask. So we'll hope to make some money in the next week, and have a good day. Take care.